and Computer Science and Arts Science Commerce College Manmad. I, Umesh Tupe, welcome to all. First, I heartily welcome to today's guest, Mr. Sanjay Chaudhary sir and Ganesh Hatare sir. Welcome, sir. Both are working in Electronics Study Center, and Mr. Ganesh sir has lot of knowledge of embedded system. He currently work on so many projects. Those are based on Raspberry Pi, Arduino, and some advanced embedded system platforms. Sir has also taken various hands-on training workshops at different UG and PG colleges. I also welcome the principal of our college, Honorable Dr. B. Jagdare sir, Dean of Science, Dr. E.V. Patil sir, Chairman of BS Electronics, Dr. C.G. Divakar sir, and all teaching staff of our college and various colleges, and my dear students. Yesterday, Mr. Sanjay sir, we already told you the basic information about electronics as well as embedded system and what is the need of basic components like resistor, capacitors, as well as active and passive components in the field of embedded system. Because without these components, embedded system can't work. As we know very well, embedded system is a combination of hardware and software. So in hardware part, these basic components play a very vital role. So by Mr. Sanjay Chaudhary sir, yesterday these things already discussed. Today our theme is Arduino and programming using Python. Now I request to principal of our college, Honorable Dr. B. Jagdare sir, to guide us. Over to you, sir. Thank you, Tupe sir. Joint webinar organized by College of Computer Science and Management Panchoti and Art Science Commerce College Manmad on electronics appliances, electronics instrumentation, electronics importance of electronics related with we invite all the industrial personalities. We have a lot of experience in this field, such that there is a maximum interaction between students and industrial personalities. Hope this series of lectures definitely benefit for the students. And I think we have today's very good eminent personalities from industry. They are going to give us very important guidelines regarding the electronic subjects. Today I observed in the morning in my home, some part of my vehicle was removed and just thrown in somewhere. Now there are a lot of electronics parts are there. आम्ही तर फक्त तिथे भरपूर इलेक्ट्रॉनिकचे पार्ट आहे, पण ते आता युजलेस झाले. त्या पार्ट म्हणजे 3,000-1,000ची जी वस्तू होते कुठं तरी एक खराबी असेल त्यामुळे ते आज शून्य झाले. असं इमॅजिन, सपोज देर आर if when you count only automobile industry and when you count the electronics parts, those are wasted out because of some reason. तर आपल्याकडे मॅनपॉवर किंवा टेक्नॉलॉजी जरी अपग्रेडेशन झाली असेल तरी वी आर नॉट रिपेअरिंग दिस थिंग्स. ऑटोमोबाईल आहे, देर आर डिफरंट, सगळ्याच आपण घरात जरी फिरलो तरी सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मध्येच फिरतोय आणि त्याच्यामध्ये लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन एव्हरी इयर्स होत आहे. तर स्टुडंटला माझी विनंती राहील की यू आर द लॉट ऑफ चान्सेस, ॲव्हेन्यूज आहेत. जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्सचा बेसिक नॉलेज तुमचं परफेक्ट असेल तर, अदरवाईज इट इज इम्पॉसिबल. आणि मग इंडस्ट्री असेल, तुमचं नॉलेज परफेक्ट असेल तर तुम्ही कुठेही काम करू शकता. आणि माझं एवढंच म्हणणं राहील की तुम्ही आतापासूनच ह्या सब्जेक्ट कडे वेगळ्या आउट ऑफ बॉक्स, यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स याचा विचार करा तुम्ही. त्यामुळे मराठी साहित्य शिकताना त्याच्याकडे आउट ऑफ बॉक्स एवढा विचार नाही करतायत, पण इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा हे प्रॅक्टिकल अप्रोच जे सब्जेक्ट आहे त्याच्याकडे आपण आउट ऑफ बॉक्स विचार करायला पाहिजे. जसं मला सकाळी जे स्पेअर पार्ट बाहेर काढलेला होता त्याच्यात इलेक्ट्रिकल मोटर होती, स्टेअरिंगच्या खाली काहीतरी एक मोटर असते आणि त्याच्यात मग इलेक्ट्रॉनिकचे पार्ट होते, वायर, ते सगळं सिस्टीम असेल, त्याचे काहीतरी असेल ना, त्याचे स्पेअर पार्ट असतील ना.
पण ते कुठेतरी वापरात यायला पाहिजे, कुठेतरी त्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे. हा, आपण फक्त त्याचं 2 मिनिटात झिरो होते. टीव्ही 2 मिनिटात आपण थोडा पार्ट खराब झाला की ती फेकली जाते. आणि असे सगळ्या घरांमध्ये हे डंप केलेले लॉट ऑफ युजफुल मटेरियल्स आम्ही वेस्टेज करतोय. तर याचा पण विचार करावा. हे कोण करू शकतो? ज्याला बेसिक नॉलेज असेल तोच त्याचा उपयोग करू शकतो आणि त्याचा वापर करू शकतो. आणि आपल्या देशामधलं ही जी ऍसेट आहे, मी त्याला ऍसेट म्हणतोय, कारण आम्ही 12-15-20 लाखाची कार खरेदी करतो, पण किरकोळ स्पेअर पार्ट खराब असतात किंवा आपण पाहिले की सगळ्या पोलीस स्टेशन, सगळ्या गॅरेज, कुठेही बघा कितीतरी व्हेकल वेस्टेज ऑफ पडत आहे. पण त्याच्यामध्ये तुम्ही इलेक्ट्रॉनिकच्या स्टुडंटने इलेक्ट्रॉनिक्स किती स्पेअर पार्ट इन्व्हॉल्व होतात, आणि ते वाय नॉट यू रियूज दिस थिंग्स. That is very important. And I think from this series of lecture, you will get some insights, you will get some ideas, and the importance of subjects and how you focus on your regular teachings, learning methods. That is very important. विषयाकडे आम्ही कसं बघतोय, विषयासाठी आम्ही किती डिवोशनल देतोय, विषयाचं कॉन्ट्रीब्युशन, विषयाचं नॉलेजचं सर्वांगीण नॉलेज आम्हाला कसं मिळणार आहे, याच्यावर तुम्ही फोकस करावा, यासाठी मी शुभेच्छा देतो. आय थिंक आय डोंट वॉन्ट टू टेक लॉट ऑफ टाइम व्हॅल्युएबल ऑनलाईन, वी आर ऑनलाईन मोड, त्याचं व्हॅल्यूज मला माहिती आहे. त्यामुळे सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन इथं थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request to our guest, Ganesh sir, please Yes, sir. continue your session, sir. Yeah, thank you, sir. Over to you, sir. Thank you. Yeah. Okay, so first I require some feedback from you. Is it quite visible and audible? Yeah, is it Yes, sir. visible and audible? Yeah, Visible and audible both. yeah. Both. Okay. So this meeting is already recording. I have started recording also. Okay, so the today's topic is the introduction of embedded system platform and its application. Now, in this session, in this 2-hour session, we will explore the very basic thing from the what done by embedded, why it's called embedded, then what are the different components that we use in embedded, and what are the different microcontroller platforms or the different platforms that is available for programming the embedded system, and then what is its application. We will see one of its application and widely used currently, and that is the Arduino. We are going to explore that thing also. We'll see its hardware, we'll explore its hardware, and after exploring the hardware, again we are going to do some practical stuffs also, like we are going to perform some programs also, how to interface, how to program. We will do at least 2 programs for using some simulators. So in this session, you are going to learn the theory, you are going to learn some application parts, you are going to learn the hardware part also, and the last and very important, you are going to learn some programming part also, using which you can start by your own also. Okay, so I thank you Stupe sir for giving me this opportunity. So myself Ganesh Uttarde, I'm founder and CEO of GB Softonic Solution. We are working with the Sanjay Chaudhary sir as a co-venture. We are doing some FDPs, workshop, internship for the engineering students as well as diploma students as well as the BSc students also. And thank you the Panchavati College of Management and Computer Science and the Art and Science Commerce College Manmar for providing such a wonderful platform to share our knowledge. So first question is, before starting any topic, okay, before starting any subject, firstly you should understand the what is the meaning of that name, what is the meaning of the name of that subject. If you miss that the meaning of that subject, then actually you can't go further. So firstly we should get the meaning of embedded. सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें meaning करना होगा. What do you mean by embedded system and what is the use of it? What is the use of it? So 1 minute.
Okay, Tupe sir. Mm, Yes, sir. येस सर, ऍक्च्युली मी एक काम करतोय. मी मुलांचं ते अनम्यूट देमसेल्व्स ते काढतोय. ओके, म्हणजे काय की Okay. दे कॅन टॉक थ्रू द चॅट विंडो. ओके, सो ऍक्च्युली दॅट इज माय स्टाईल. ओके, मी ऍक्च्युली ते प्रमोट करतो. सो वॉट एव्हर द स्टुडंट्स, देर इज वन notice for you, that is if you want to ask any question, use the chat box. You don't have permission to unmute, and if you want to talk, then just raise your hand. I will unmute yourself. Okay, मैं आपको unmute करूंगा, then you can start talking. Okay. Just 1 minute. Yeah. I request to all students, please bring your notebooks as well as pen. Okay, to write some important points. Yeah. Okay, thank you, sir. Over to you, sir. Okay. So first one is we'll see what do we mean by embedded system. ये क्या होता है? As the name indicates, actually it is a system. What is the system? What the system contains? The system contains the different component. And what are the different components this system is having? It is having the hardware as well as the software. These are the two major component this embedded system is having. So let's see its definition. Its definition, as the Tupe sir has told, it is the combination of the computer hardware. It is a combination of computer hardware and software. Yeah, firstly, I'll just look at these two words: combination of hardware and software. This is a very, very important thing. It means that if you talk about any electronic circuit, and to operate that electronic circuit, if there is no programming available inside that system, then you can't say that is an embedded product. So what is the actually embedded system? So it is the combination. It should have both. It must have the computer hardware, and also it must have the software. So what is the software? Software is called the program to control the hardware. Just like take an example of your personal computer. Okay, एक एक्झाम्पल घेतो आपण, तुमचं स्वतःचं एक कम्प्युटर, तुमच्या जवळ जो लॅपटॉप आहे, or take an example of your mobile also. Suppose if your mobile of your computer is not having the operating system, it is not having the operating system installed, it is only having the computer hardware, then it is having the no use. Okay, उसका कोई भी यूज नहीं होगा. आप बाजार से एक नया खरीद के लाए CPU, उसमें हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, सब कुछ है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, all these things are available, but there is a missing of operating system. If there is a missing of operating system, then if there is a missing operating system, then you can't operate that hardware, you can't use that hardware. So how to use the hardware? Because the user don't know how to read the ROM memory, how to read the RAM memory. The user don't know how to use the that digital electronics, how to read the commands from the keyboards, how to read the commands from the mouse, how to send some display on the monitor. So you don't know, your user don't know. That's why we must have one program that is being already installed in your computer, which is understanding how to operate this hardware. So what is the operating system? Actually, operating system is nothing but it is operating that particular system. It is operating the hardware. If it is operating the hardware, then that program is called the operating system. If you are managing the hardware, so what has to be seen on monitor, what has to be taken from the keyboard, what has to be taken from the mouse, if that particular program is knowing that, then that is called the operating system. So if your computer is not having the operating system, then you can't see that it is a useful. So it is very similar like that also. Embedded system must have the hardware, yes, and the software also. Software is nothing but your program written by the programmer. जो भी programmer you write करेगा, that program is called as a software. But the next line is again very, very, very important, and that is which is dedicated or which is designed
to perform a specific task. एक ही task के लिए अगर मैंने एक system design किया है, for single task, if I'm designing a particular system, then you can say that that is the embedded hardware. Getting that? So if your product is doing a various tasks and you can add the new task inside it, every day you are adding the new task, so that is not embedded hardware. You can think like your computer. In a computer, actually, you can use the Microsoft Office. But suppose if you want to open the PDF, so what you are doing? You install the new hardware. You install the new software. So it means that using the computer, you can do the lots of tasks. But if you are taking the example of embedded hardware, then it is designed to perform a specific task. Just take an example of one of the embedded hardware as a digital clock. Your digital clock can able to see, or using the digital clock, you can only able to gauge the what is the current time and the date. What is the current time and the date? That you are only getting. You cannot modify to get to display a TV or to display a channel on the digital clock. So it is specifically doing that particular task. Just like take example of again a modem, internet modem. Using the internet modem, you can only get the internet from the WAN network, and that network, the internet that you are getting from WAN network gets spread over the LAN network. Getting that? So it means that is only designed to perform a specific task. So one important rule to make your embedded hardware is it must have the computer hardware, it must have the software, and it is performing only a specific task. If the programmer has done that particular program, it is fixed, and that particular thing, that particular hardware will performing only that task repeatedly. That is again important one. It is performing the task repeatedly. If it is performing the task repeatedly, then that is the embedded hardware. So always, that's why whatever the embedded program we are always writing in a while one loop. That is called as an infinite loop. We are always writing a program in infinite loop. So it should be a never-ending program. It is not like your C language program. Like main function over, your program is over. But it is not in the case of embedded hardware. In an embedded hardware, if your program is ended, so there is no meaning of your embedded hardware. Your program should be a never-ending program. It should be a never-ending program. Your program never ends. Getting this? So what is the computer hardware? Just can you tell me? जहां तक हमने अभी डिस्कशन किया, देखो उसमें से जो भी मैंने बोला, उसमें से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर दिस एक्चुअली आई हैव यूज्ड. बट व्हाट डू बाय कंप्यूटर हार्डवेयर? किसी को पता है कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर? क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब, यस, टेल मी. You can use the chat box. I'm giving you the first clue. Computer hardware, it must have CPU. इसके पास क्या होगा? CPU. It is the CPU. Second example of the computer hardware is the ROM memory, that like your hard disk. Third one is the RAM memory, like your RAM is the third computer hardware. Fourth one is your keyboard, then the mouse, and then what is the display device that we are using? Monitor. So these are the computer hardware, and using this computer hardware, we are designing a embedded system. Take an example of the digital clock. Okay. Take an example of the digital clock. तर डिजिटल क्लॉकचं जर मी एक्झाम्पल घेतलं तर त्यामध्ये कम्प्युटर हार्डवेअर काय काय असणार आहे? कॅन एनीबडी टेल मी? कोणी सांगू शकतं? जर मी डिजिटल क्लॉक घेतला, बघा तुमच्या मार्केटमध्ये जर तुम्ही गेलं आणि विकत घ्यायला गेलो कम्प्युटर, माझ्याकडे मी एक एम्बेडेड हार्डवेअर विकत घेतोय आणि मी एक डिजिटल क्लॉक घेतोय. आता डिजिटल क्लॉक मध्ये काय दिसतो? वी विल सी द टाइम. तिथे टाइम दिसतो. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट आर द हार्डवेअर इट इज हॅव्हिंग? कोणाला माहिती आहे त्याच्यामध्ये काय काय हार्डवेअर असू शकतं? सांगू शकता? आता सॉफ्टवेअर काय ते तर माहिती आहे. द सॉफ्टवेअर इज बीन रिटन बाय द प्रोग्रामर. बघा
प्रोग्रामर जे लिहितो आहे त्याला म्हणतात सॉफ्टवेअर. पण जे ऍक्च्युअल वी कॅन सी जो आपल्याला दिसतंय, जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्यूटर हार्डवेयर. क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? अगर मैं इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल क्लॉक, अगर डिजिटल क्लॉक का एग्जांपल है तो क्या होगा? चैतन्य, यस, वेरी करेक्ट. And Chaitanya is the first person to reply. So congratulate Chaitanya. So it is a display, 7 segment display. Yeah, correct. 7 segment display. 7 segment display होता है देखो वहां पे. मतलब कसं की 4:10, 10:05. ओके, तर तिथे काय आहे? टू डिस्प्ले, तिथे एक डिस्प्ले असतो. ओके, अजून काय असतं? चला सांगा, पटापट सांगा. मला डिस्प्ले आहे, अजून काय असतं? व्हॉट आर द डिफरंट कम्प्युटर हार्डवेअर? काय असतो तिथे कम्प्युटर हार्डवेअर? त्यामध्ये काय असेल? त्यामध्ये त्याची मेमरी असेल. इट इज हॅव्हिंग इट्स मेमरी. इट इज हॅव्हिंग इट्स मेमरी असेल की नाही का? कारण जो टाइम ते दाखवतो आहे तो कुठेतरी स्टोअर करावा लागणार. तो कुठे स्टोअर कराल? मेमरीमध्ये. सो इट इज हॅव्हिंग मेमरी. ओके, मग टाइम तो काउंट करावा लागेल, टाइम इन्क्रीमेंट करावा लागेल. सो कोण रिस्पॉन्सिबल असतो टाइम इन्क्रीमेंट करण्यासाठी? का आरटीसी मॉड्यूल, रिअल टाइम क्लॉक मॉड्यूल, आरटीसी मॉड्यूल. सो दिस कम्प्युटर हार्डवेअर इट इज हॅव्हिंग. त्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर असणार. इट इज हॅव्हिंग अ मायक्रो कंट्रोलर. हे बघा, हे सगळं त्यामध्ये एकाच गोष्टीमध्ये इनबिल्ट आहे. ओके, तर जे आपल्याला डोळ्याने दिसतं त्याला म्हणू शकता आपण कम्प्युटर हार्डवेअर. पण त्या सगळे डोळ्याने दिसणाऱ्या ज्या गोष्टींना जे चालवतं त्याला काय म्हणतात? प्रोग्राम. अँड दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेअर. त्याला काय म्हणतात? सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर इज, यू कॅन से इट इज अ इंटेलिजंट थिंग. सॉफ्टवेअर एक इंटेलिजंट थिंग आहे की तो कम्प्युटर हार्डवेअरला चालवतो. सॉफ्टवेअर नसेल तर कम्प्युटर हार्डवेअर, बघा तुमचं एक वॉच आहे, डिजिटल क्लॉक आहे, नवीन एकदम आणलं पण तो चालतच नाहीये, बॅटरी नवीन टाकली, चालतच नाहीये, दिसतच नाहीये, काहीतरी वेगळंच दिसतंय. तुम्ही वापरणार ते क्लॉक? तुम्ही वापरणार डिजिटल क्लॉक? नाही वापरणार. का? कारण त्याच्या प्रोग्राम मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आलाय. प्रोग्राम मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आलाय म्हणून तो इट इज नॉट शोविंग द ऍक्च्युअल आउटपुट. ऍक्च्युअल आउटपुट नाही सेव्ह करत आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो इथे विदाउट सॉफ्टवेअर वी कांट यूज द हार्डवेअर. गेटिंग दिस? आता हे आपण कम्प्युटरचं एक्झाम्पल आपण कम्पेअर करू एम्बेडेडशी. कम्प्युटरमध्ये आय कॅन इन्स्टॉल द डिफरंट सॉफ्टवेअर्स. मला आता मी वापरतोय मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस साठी, पण मी तो गेम खेळण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो. मी ते इंटरनेट ब्राउझिंग करण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो. सो इट इज नॉट डिझाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. पण एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल ऑफ मोबाईल बघा, एक एक्झाम्पल ऑफ मोबाईल. एक मोबाईल घ्या, छोटासा मोबाईल. ओके, तो अगोदर यायचा तो. इट इज डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. आताचे जे स्मार्ट मोबाईल आहे, स्मार्ट मोबाईल इज जस्ट लाईक युअर लॅपटॉप. लॅपटॉप सारखेच आहे बघा, त्यामध्ये तुम्ही नवीन नवीन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करू शकतात. बट गो बॅक 10 years अगो, बघा 10 वर्षापूर्वी जर गेले ना, मोबाईल घ्यायचा असला तर एक छोटा मोबाईल यायचा, त्यामध्ये कीपॅड असायचा, वरती छोटी स्क्रीन असायची. तुम्हाला मोबाईल लावायचा आहे, नंबर टाईप करा, कॉलचं बटन दाबा, कॉल लागायचा. तुम्ही मेसेज टाईप करायचा, मेसेज बॉक्स मध्ये जायचा, मेसेज टाईप करायचा, सेंड बटन, मेसेज सेंड. सो इट इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क. आणि त्यामध्ये आपण नवीन काही इन्स्टॉल करू शकत नव्हतं. दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. आर यू गेटिंग दिस? मग असं काही तुम्ही डिझाईन करताय की ते एकच काम करणार आहे, रिपीटेडली करणार आहे, कंटिन्युअसली रिपीटेडली करणार आहे, तर त्याला काय म्हणतात? एम्बेडेड हार्डवेअर. एक एक्झाम्पल आपण बघूया. वन ऑफ द एक्झाम्पल, these are the some examples of the embedded hardware. तर कॅन यू टेल मी व्हॉट आर द एक्झाम्पल? असे कोणत्या गोष्टी आहे की ते तुमच्या घरामध्ये आहे आणि त्या मी जे एक्झाम्पल सांगितले, या डेफिनेशन सांगितले त्याला मॅच करताय? यस, जस्ट टाईप the name of the embedded product that is available in your home. तुमच्या घरामध्ये असे काही प्रोडक्ट आहे की या डेफिनेशनला फुलफिल करताय? असे काही प्रोडक्ट आहे का? जस्ट यस, लॅपटॉप. या टुडेज लॅपटॉप इज ऑल्सो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. हे का असतं ते सांगेल मी तुम्हाला. कॅल्क्युलेटर, यस चैतन्य. अमित कुमार सेज वॉशिंग मशीन. यस, करेक्ट. वॉशिंग मशीन इज ओनली एबल टू परफॉर्म द जॉब ऑफ द वॉशिंग. बघा नितीन म्हणतोय की फ्रीज आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हन पण दॅट इज ऑल्सो द परफॉर्मिंग सिंगल टास्क. एकच टास्क करतं बघा ते. फ्रीज काय करतो? रेफ्रिजरेटर फक्त ज्या गोष्टी त्यामध्ये ठेवल्या त्या थंड करणार. फ्रीज मध्ये तुम्ही कपडे टाकले तर ते धुणार नाहीत. मायक्रोवेव्ह ओव्हन मध्ये जर तुम्ही काही वस्तू ठेवल्या आणि त्याला सांगितलं की थंड कर, तो थंड नाही करणार, गरमच करणार. सो इट इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क. टेलिव्हिजन, ट्विंकल मोरे सेज टेलिव्हिजन, करेक्ट.
व्हॅलिजन मधून आपण फक्त तिथे जे काही आपण त्यावरती लावतो तेच फक्त बघू शकतो. ओके, मोबाईल फोन, टीव्ही सेट टॉप बॉक्स, नितीन व्हेरी करेक्ट. टीव्ही सेट टॉप बॉक्स इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल. बघा, सेट टॉप बॉक्स मध्ये प्री डिफाईन इनपुट आउटपुट असतात. बघा, सीसीटीव्ही, शुभ्रांशू सेज सीसीटीव्ही. अगेन रिमोट कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल. टेलिफोन, तुम्ही जो टेलिफोन वापरता घरी, BSNL टेलिफोन, फॅक्स मशीन, झेरॉक्स मशीन, युअर कॅम कोडर, डिजिटल कॅमेरा, युअर ऑल द टाइप्स ऑफ द रिमोट्स, एसी, फॅन. या फॅन मतलब फॅन कोणचा फॅन? फॅन जो ट्रॅडिशनल फॅन नाही, जो अभी जे नवीन फॅन आले बघा मार्केटमध्ये, रिमोट ऑपरेटेड फॅन. बघा, रिमोट वर तुम्ही बटन दाबलं, तुमचा फॅनचा स्पीड चेंज होणार. ओके, दॅट इज द काइंड ऑफ और द एक्झाम्पल ऑफ द एम्बेडेड हार्डवेअर. बघा, भरपूर एक्झाम्पल आहे. तुम्ही त्याची लिस्ट बनवत बसाल ना, तर त्या कमीत कमी 50 ते 100 तुम्हाला लागेल. पण जर असे प्रॉडक्ट जर पुऱ्या जगामध्ये बघितले तर कमीत कमी 5-6 हजारच्या वरती तरी ते पूर्णचे पूर्ण प्रॉडक्ट येणार आहे. गेटिंग दिस? सो दॅट इज द ऍक्च्युअली. आणि प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन प्रॉडक्ट आहे. बघा, चायनाचे नवीन नवीन प्रॉडक्ट ते काय करतात, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स. दे आर मेनली फोकसिंग ऑन कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स. आपल्याला नेहमी काय काय प्रॉब्लेम येत आहे ते फाइंड आउट करतात आणि ते काय करतात, त्याचं एक सोल्युशन बनवतात, एक छोटं सोल्युशन, बॅटरी ऑपरेटेड सोल्युशन, आणि त्यानंतर ते मार्केटमध्ये आणतात. मग लोकांना ते डिफिकल्टी असते, मग ते लोक ते विकत घेतात. जसं की एक छोटासा फॅन आहे बघा, आपला जनरली फॅन असतो, आपण आपला वरती वॉल फॅन राहतो किंवा वरती लावलेला फॅन असतो. ओके, सिलिंग फॅन. आता तो सिलिंग फॅन, वॉल फॅन तर ठीक आहे. चायनाने काय केलं, एक छोटा फॅन 12 व्होल्ट वरती किंवा 5 व्होल्ट वरती चालणारा फॅन, USB फॅन, तो आणला. लॅपटॉप सुरू असताना काय होईल, तुम्हाला जर लाईट गेली असेल आणि छोटासा तुम्हाला पाहिजे असेल फॅन, देन दॅट इज द नीड, तो फॅन आणला. सो दॅट काइंड ऑफ दी एम्बेडेड प्रोडक्ट यू कॅन गिव्ह हियर. Okay, so what is the actually computer hardware that we have discussed? हमने यहाँ पे देखो क्या किया, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमने किया. उसके एग्जाम्पल भी देखे. अभी ये एम्बेडेड सिस्टम में क्या यूज होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हार्डवेयर मतलब क्या होता है. हार्डवेयर तो मैंने बोला डिफरेंट IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो मैंने लिस्ट आउट कर दिए, लेकिन उसके साथ हमें क्या लगता है, व्हाट वी जस्ट, हमें अभी कंज्यूमर के हिसाब से नहीं काम करना है, हिसाब से नहीं सोचना है, हमें प्रोग्रामर के हिसाब से सोचना है हमें. तो मार्केट में अगर मैं एम्बेडेड प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू डिजाइन वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, मुझे सेल करना है, कंज्यूमर प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यस, क्या यूज करूंगा, व्हाट आई एम यूजिंग फॉर डिजाइनिंग माय एम्बेडेड हार्डवेयर. क्या यूज करूंगा, एम्बेडेड प्रोडक्ट करना है तो क्या करूंगा, मार्क क्या क्या अवेलेबल है. तो देखो, 2 चीज अवेलेबल है. कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से आप पूछोगे कि सर मुझे प्रोग्रामिंग करना है, तो सर मैं क्या यूज करूंगा, तो वो बोलेगा या यू कैन यूज माइक्रो प्रोसेसर, यू कैन यूज माइक्रो कंट्रोलर. आप माइक्रो प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो कौन सा यूज करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे या माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे या माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे. तो माइक्रो प्रोसेसर इज हैविंग इट्स ओन एडवांटेज एज वेल एज इट्स डिसएडवांटेज also. Microcontroller is also having its advantage as well as its disadvantage also. Now we will discuss about in what case we will use microprocessor for designing a embedded product. तो ऐसे नहीं है कि embedded product करना है तो माइक्रो कंट्रोलर ही यूज करना होता है, ऐसे नहीं है. You can design the Mahesh, you can design your embedded product using the microprocessor also. But in what case? कौन से केस में, जब भी आपको एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, कि इसका स्पीड होगा ना, दैट स्पीड आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज द स्पीड. आपको ऐसा प्रोग्राम रन करना है वो रियल टाइम उसने आंसर देना चाहिए, रियल टाइम आंसर. सो दैट शुड बी रियल टाइम. तो ऐसे रियल टाइम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड ज्यादा चाहिए. तो स्पीड किसका ज्यादा होता है, माइक्रो प्रोसेसर का होता है, माइक्रो कंट्रोलर का होता है. अगर आप थियरी में पढ़े ना तो आपको बोलेगी माइक्रो प्रोसेसर्स आर जनरली इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज. अभी के
माइक्रो प्रोसेसर जो भी हम मार्केट में आते हैं ना, दे आर हैविंग द स्पीड इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज, बट if you're talking about microcontroller, the low cost microcontroller, okay, low cost microcontroller is having the speed of megahertz. So tell me which speed is more, gigahertz or megahertz? Just type your answer in chat box. आपको बोलना है मेगाहर्ट्ज ज्यादा होता है या गीगाहर्ट्ज ज्यादा होता है? Yes, which one is the higher, which is having the higher speed, gigahertz or megahertz? Yes, Chaitanya. गीगाहर्ट्ज, यस करेक्ट, इट इज द गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का स्पीड जाता होता है, गीगाहर्ट्ज जैसे कि हमने कंप्यूटर, जैसे हम मोबाइल पे लेना है ना, तो मोबाइल में देख ले उसका स्पीड कितना है, 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज से, कितना गीगाहर्ट्ज का स्पीड है। ओके, तो ये हम देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि ओके मेरा प्रोडक्ट ऐसा चाहिए ना कि एकदम तुरंत उसने जवाब देना चाहिए, तुरंत उसने जवाब देना चाहिए। वॉट एवर द इनपुट आई एम गिविंग दैट शुड बी इंस्टेंटली प्रोसेस, इंस्टेंटली प्रोसेस करना चाहिए। तो इंस्टेंटली प्रोसेस करने के लिए सपोज मैंने सिलेक्ट कर दिया माइक्रो प्रोसेसर मेरे एम्बेडेड हार्डवेयर के लिए। ओके, तो व्हाट द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स, माइक्रो प्रोसेसर ओनली कंटेन्स सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, सिर्फ सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो उसके पास एक सीपीयू होता है, उसको सिर्फ कमांड चाहिए, वो जो आप कमांड दोगे वो एग्जीक्यूट करेगा और वो एग्जीक्यूशन का आउटपुट आपको दे देगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सीपीयू मैंने यहाँ पे खरीदा। ओके, सीपीयू मतलब एक माइक्रोप्रोसेसर खरीद लिया, तो एक चिप हो गया मेरे पास। अभी देखो, अगर मुझे प्रोग्रामिंग उसमें देना है, इफ आई वांट टू गिव द प्रोग्राम टू दैट माइक्रो प्रोसेसर, तो मुझे क्या देना होगा उसको, मुझे जो प्रोग्राम तो देना होगा ना। सो इन व्हाट वे वी आर गिविंग द प्रोग्राम, तो एक एक लाइन तो नहीं देंगे हम, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे एंड दैट होल प्रोग्राम वी शुड गिव टू द सीपीयू। तो पूरा प्रोग्राम देने के लिए हमें वो स्टोर करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टोर समवेयर। तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, वी रिक्वायर द मेमोरी। हमें क्या लग चाहिए, कोड मेमोरी चाहिए। हमें क्या चाहिए, कोड मेमोरी। ऐसा एक मेमोरी चाहिए कि विच इज अ परमानेंट मेमोरी। तो हम क्या करेंगे, वी आर डाउनलोडिंग आवर प्रोग्राम इनटू द रॉम मेमोरी। तो हमें रॉम मेमोरी इंटरफेस करना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर से। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटरफेस द रॉम मेमोरी विद द माइक्रो प्रोसेसर। तो रॉम मेमोरी मैंने इंटरफेस कर दिया। रॉम मेमोरी किस लिए, कोड मेमोरी के लिए। ओके, अभी हो गया। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, व्हेन आई रनिंग द प्रोग्राम, सम टेम्पररी वेरिएबल्स गेट क्रिएटेड। देखो, कभी भी सब एडिशन ऑफ 2 नंबर किया तो एक रिजल्ट का एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट होता है। So I have to store that temporary variable somewhere. So what is that memory? तो मुझे ऐसा एक मेमोरी चाहिए कि वो क्या करेगा, एक स्क्रैच पैड जैसा काम करेगा। जैसे आपके पास अभी नोटबुक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो लिख रहे हो। So that is the called as a scratch pad memory, also called the read write memory. तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to interface RAM memory also. तो मेरे पास देखो 3 आईसी हो गए, 3 आईसी हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रोम मेमोरी हो गया, रैम मेमोरी हो गए। तो तीनों आईसी को मैं इंटरफेस करूंगा यूजिंग द पीसीबी से इंटरफेस करूंगा। ओके, हो गया। लेकिन मुझे एक्सटर्नल आईओ पोर्ट्स भी तो चाहिए कि नहीं, क्यों चाहिए, बिकॉज इफ आई वांट टू गिव सम इनपुट्स, मुझे स्विच इंटरफेस करना है, मुझे एलईडीज इंटरफेस करने हैं। इफ आई वांट टू इंटरफेस द एलईडी एज वेल एज द स्विच, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक आईओ पोर्ट भी यहाँ पे चाहिए। डिफरेंट आईओ पोर्ट्स यू मस्ट हैव। तो देखो 4th आईसी भी आ गया मेरे पास। माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, आईओ पोर्ट्स है। टाइमर्स कब लगते हैं मुझे, टाइमर्स और काउंटर, तो अगर कुछ डिले चाहिए या कुछ एक्सटर्नली पल्सेस काउंट करने, सो वी शुड हैव द टाइमर एंड काउंटर। किसी दूसरे चीज है, इफ देयर आर वन सीरियल डिवाइस एंड इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद दैट सीरियल डिवाइस, देन यू शुड हैव द सीरियल पोर्ट। तो ये देखो, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है ना, अगर करना है तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो कितने आईसीज हो गए, 6 आईसीज। तो 6 आईसी में इंटरफेस करूंगा, पीसीबी करूंगा, एंड द साइज ऑफ दैट पीसीबी बिकम दिस मच, 10 by 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर। ओके, आप बोलो कि सर मुझे क्या करना है अभी, मुझे ये पीसीबी यूज करके ना सर मुझे एक डिजिटल क्लॉक बनाना है। डिजिटल क्लॉक जो हाथ के ऊपर, आपका हाथ के ऊपर मैं बांधूंगा। तो बोलो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का तो आपका पीसीबी हो गया। ओके, अभी डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले लगा दिया, उसके बाद में उसका आउटर केसिंग होगा, उसको बैटरी लगाना पड़ेगा। तो द वेट एंड साइज ऑफ द एम्बेडेड प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है बहुत फास्ट काम कर रहा है,
लेकिन आप कहाँ पे मिस कर दिए, आपने साइज मैटर ने, आपने यहाँ पे साइज आपने कंसिडर नहीं किया, आपने वहां पे उसका वेट कंसिडर नहीं किया। अगर प्रोडक्ट अगर आप लाते हो मार्केट में, नो वन विल गोइंग टू बाय। आप बोलो कि अरे मेरा एकदम क्लॉक है ना, एकदम फास्ट है, बहुत फास्ट है, कोई खरीदेना है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डिजिटल क्लॉक आपके हैंड वॉच मतलब कोई खरीदेगा नहीं। साइज मैटर, आपको ऐसा कुछ चाहिए कि छोटे साइज में चाहिए, तो छोटे साइज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्लूड all these ICs जो मुझे एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते हैं, all these IC we have to include in a single IC। मुझे एक सिंगल आईसी में चाहिए, तो क्या किया, एक सिंगल आईसी में यहाँ पे पूरे जो रिक्वायरमेंट थे, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट, दैट गेट ब्रिंग इनटू द वन स्मॉल आईसी। एक ही आईसी मिला है, उसको नाम दे दिया माइक्रो कंट्रोलर। इट मींस दैट इट कैन प्रोसेस, इट कैन कंट्रोल, इट कैन प्रोसेस एज वेल एज इट कैन कंट्रोल। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, इट इज हैविंग द सीपीयू, इसके पास सीपीयू भी होता है, खुद का सीपीयू होता है, बट द स्पीड इज लेस देन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, लेकिन स्पीड तो कुछ नहीं है क्योंकि एक ही काम करना है। माइक्रो प्रोसेसर को बहुत सारे काम करने होते हैं, एट अ टाइम दे कैन परफॉर्मिंग द मल्टीपल टास्क। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या होती है चीज, मल्टीटास्किंग मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चला रहे हो, इंटरनेट ब्राउज भी कर रहे हो, डाउनलोडिंग को भी लगा रहे हो, आप कोई सुन भी रहे हो, कुछ वीडियो भी प्ले कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, ऑल थिंग्स आर डूइंग एट अ साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे तो नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर का डेफिनेशन हमने देखा, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक ही टास्क एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे स्पीड तो कम ही चलेगा हमें। ओके, रैम, रैम भी थोड़ा सा ही लगेगा। ओके, रोम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा मतलब क्या, 4 किलोबाइट्स, इट इज वेरी इनफ। हमें सीपीयू में जैसे कंप्यूटर में कितना रोम होता है, रोम इज जनरली कॉल्ड एज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितना चाहिए हमें, हम क्या कहते हैं 1 TB का हार्ड डिस्क लेते हैं, 500 GB का हार्ड डिस्क लेते हैं। यहाँ पे उतना नहीं है। हमारा प्रोग्राम कितना होगा, एक ही प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है, तो 4 KB रैम इज वेरी सफिशियंट। तो छोटा रैम लेंगे, छोटा रैम लेंगे। आईओ पोर्ट्स, या तो मैं 5 आईओ पोर्ट्स लूंगा, 24 आईओ पोर्ट्स लूंगा, 10 आईओ पोर्ट्स लूंगा, 14 आईओ लाइन। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिक्वायरमेंट, मेरे पास रिक्वायरमेंट कितना है उसके हिसाब से आईओ पोर्ट्स भी लूंगा। सो देयर आर वेरिएंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स आर अवेलेबल। सीरीज एक ही होती है लेकिन उसका साइज बड़ा, ये पहले छोटा, एक आईओ का, 5 आईओ का, 10 आईओ का, 15 आईओ का, डिफरेंट साइजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपके कॉस्ट के हिसाब से, साइज के हिसाब से आपको पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर यू हैव टू परचेस। टाइमर्स भी इसमें दिए होते हैं, सीरियल पोर्ट्स भी दिए होते हैं। सीरियल पोर्ट आर जनरली गिवन फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक द ब्लूटूथ कंट्रोलर। जैसे ब्लूटूथ से आपको मोबाइल से कम्युनिकेशन करना है, so there is a serial port is also given. So microcontroller, why we prefer the microcontroller for designing the embedded hardware, because of its size। साइज छोटा है, छोटे साइज में पूरा काम हो रहा है। और द सेकंड थिंग इज कॉस्ट। 6 ICs खरीदना और सिंगल IC खरीदना, which one is cheaper? Microcontroller is cheaper than microprocessor। Getting this? तो साइज और कॉस्ट अगर मुझे कम चाहिए, so I am always preferring the microcontroller। So are you getting this? Just type yes in chat box अगर ये समझ में आया आपको, why microprocessor and why microcontroller, when to use microprocessor, when to use microcontroller। जब जहां पे भी आपको एकदम सपोज, जैसे कि ऐसे मुझे एक डिजाइन करना है, एक रोबोट डिजाइन करना है, आई वांट टू डिजाइन वन रोबोट, वो रोबोट मुझे भेजना है मार्स के ऊपर। ओके, रोबोट भेजना है मार्स के ऊपर। ओके, तो मार्स के ऊपर भेजना है तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे मुझे साइज तो मैटर करेगा ये, लेकिन वहां पे स्पीड भी मैटर करेगा। आपको जो भी इनपुट आएगा, एक्सटर्नल इनपुट, वो उसने कंटिन्यूअसली और रियल टाइम प्रोसेस करना चाहिए। तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा, उस टाइम में आई एम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, आई एम यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर। जब भी स्पीड, जैसे कि एंटी मिसाइल सिस्टम आपको डिजाइन करना है, एंटी मिसाइल सिस्टम, तो एंटी मिसाइल सिस्टम अगर डिजाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, वहां पे एक नैनो सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नैनो सेकंड। क्योंकि अगर कैलकुलेशन से अगर आप 1 नैनो सेकंड मिस कर दिए तो आपका मिसाइल लॉन्च होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपका एंटी मिसाइल सिस्टम जो मिसाइल आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो वहां पे स्पीड चाहिए, रियल टाइम चाहिए। तो रियल टाइम जब चाहिए ना, सो select the microprocessor, otherwise select the microcontroller having the very good speed in terms of gigahertz। ऐसे भी माइक्रोकंट्रोलर अभी मार्केट में है, they are having the speed of gigahertz, gigahertz के भी
माइक्रो कंट्रोलर अभी मार्केट में आए, बट दे आर समवॉट कॉस्टलियर. Yes, Chaitanya, Raspberry Pi. Okay, Raspberry Pi is having the speed of 1 gigahertz or even more than that also. Okay, so what are the different microcontrollers? I'm talking about the general microcontrollers. Okay, so अभी कौन कौन से microcontroller available है? ये देखो 8051 पर्स वाला आपने सुना ही होगा. How many of you have heard this word 8051? कितने लोगों ने कभी सुना है क्या 8051 ऐसा कुछ होता है? Yes, just type 8051. Just type 8051. 8051 क्या होता है? It is actually series. It is the family. 8051 is the family. It is not the name of any IC. या कोई IC का नाम नहीं है. It is the actually family. It has been introduced by the Intel. This family has been introduced by the Intel. Different types of micro manufacturers are there for 8051. लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका how much of data it can process. It can process 8-bit data only. मतलब अगर 8051 में मेरे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा तो एट अ टाइम उसका ALU कितना डेटा प्रोसेस करेगा? इट कैन एबल टू प्रोसेस ओनली 8-bit डेटा. सिर्फ 8 बिट का ही डेटा प्रोसेस करेगा, ज्यादा नहीं करेगा. अगर ज्यादा करना है तो क्या, सपोज इफ आई हैव द 16-bit डेटा, मेरे पास 16-bit का डेटा है और मैं यूज कर रहा हूँ 8051 यूज कर रहा हूँ, तो 8051 यूज कर रहा हूँ, 16-bit का डेटा मुझे प्रोसेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले 8-bit देना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरा 8-bit देना पड़ेगा. आई हैव टू प्रोवाइड द लोअर 8-bit एंड देन हायर 8-bit. गेटिंग दिस? तो इस तरीके से मुझे मल्टीपल डेटा आई कैन प्रोसेस यूजिंग द 8051. गेटिंग दिस? Now the next one is the PIC microcontroller. अब PIC microcontroller, you can think this PIC microcontroller as a double speed than 8051. अब ऐसे आप बोल सकते हो. अभी डबल स्पीड क्यों है? क्योंकि देखो, if suppose consider that 8051 and PIC microcontroller having the same speed. ओके, ये 16 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम करेगा, ये भी 16 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम करेगा. अभी अगर बी बोथ आर वर्किंग ऑन 16 मेगाहर्ट्ज, लेकिन ये देखो 8051 8-bit डेटा एट अ टाइम प्रोसेस करता है, लेकिन PIC माइक्रोकंट्रोलर प्रोसेसिंग 16-bit डेटा. ये 16-bit डेटा एट अ टाइम प्रोसेस करता है. सो व्हिच वन इज फास्टर? दो द 51 एंड PIC आर हैविंग द सेम स्पीड, उसका क्लॉक स्पीड सेम ही है, तभी भी आप बोल सकते हो कि PIC जो है ना सर, इसका स्पीड डबल है. जैसे आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हो, देखो हमारा लैपटॉप अभी दो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं. 32-bit का कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक होता है 64-bit का कॉन्फ़िगरेशन. अभी 32-bit का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि 32-bit डेटा इज ओनली प्रोसेस एट अ टाइम. लेकिन वही अगर आपका CPU 64-bit का है तो 64-bit डेटा can process at the same time. So which one is faster? 64-bit 64-bit microprocessor is working faster. तो ये क्या होता है? उसका साइज होता है डेटा बस का. दिस इज साइज ऑफ द डेटा बस दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द ALU. ALU को जो प्रोवाइड करते हैं ना, उसका साइज है 68-bit, 16-bit, 32-bit. ये ARM माइक्रोकंट्रोलर इज अगेन फेमस वन which are having the data bus of size the 32-bit. और ये मेजर यूज जो एकेडमिक्स में मोस्ट ऑफ यूज है, दैट इज कॉल्ड ATmega माइक्रोकंट्रोलर, having the speed having the data bus of 8-bit as well as 16-bit as well as the 32-bit. तीनों साइज में आते हैं ATmega के. 8-bit के ही आते हैं, 16-bit भी आते हैं, 32-bit के भी आते हैं. अगर आपको बहुत सारा अगर इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए, so you can visit this link जो यहाँ पे लिए ना, this link. I just type list of common microcontrollers on Google and you will get that Wikipedia list. Okay, so in that actually link you will get all the manufacturer also and all the list of the available microcontroller for that manufacturer. सभी है. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं. अभी हमने देख लिया, देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है वो देखा, उसके बाद में हमने एग्जांपल देखे, उसके बाद में हमने डिस्कशन किया माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर कब क्या होता है, एंड व्हेन टू यूज माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हेन टू यूज माइक्रो कंट्रोलर. कब यूज करेंगे माइक्रो प्रोसेसर, कब यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे. तो हमने देख लिया अभी माइक्रो कंट्रोलर हमें यूजफुल होता है. क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट भी कम होता है, उसका साइज भी कम होता है. ओके, तो मैंने डिसाइड कर दिया. अभी मैं करूंगा कि कौन सा अभी मैं यूज करूंगा, विच माइक्रो कंट्रोलर आई एम यूजिंग. 8051 यूज करूंगा या PIC यूज करूंगा या ARM यूज करूंगा या ATmega यूज करूंगा. तो आपके हिसाब से विच, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा. या एंड कॉस्ट
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर, व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी करेगा। आपको अगर एक छोटा सा करना है कि सर मेरा कॉस्ट मैक्सिमम 150 रुपीज तक जाना चाहिए, सो गो फॉर 5 5 का आता है कम से कम 20-25 रुपए में आपको छोटा माइक्रो कंट्रोल आ जाएगा एट 80 टाइनी बोलते हैं उसको, 80 टाइनी। ओके, सो विच इज हैविंग ओनली 8 पिंस का होता है, ओनली 8 पिन का फॉर्मेट होता है। लेकिन when to use Arduino and what is Arduino, यहाँ पे जो हम यहाँ पे वर्कशॉप हम लेने वाले ये या वेबिनार लेने वाले हैं, इसमें मुझे बोला गया है कि सर एक्सप्लेन द आर्डिनो, या आर्डिनो क्या होता है एक्सप्लेन करो। तो आर्डिनो क्या है सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। आर्डिनो इज अ ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म। अभी ये देखो, ये 4 चीज है ना, ये 4 वर्ड्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ ओपन सोर्स। अभी ओपन सोर्स मतलब क्या है कि इसका सब कुछ है ना खुला है, मतलब all things is available freely, its code is also available, its program is also available freely, its hardware is also open source, इसका हार्डवेयर भी ओपन सोर्स है। लेकिन ये किस लिए यूज होता है? इट इज मेनली यूज फॉर द प्रोटोटाइपिंग, इट इज मेनली फॉर प्रोटोटाइपिंग। अगर प्रोटोटाइपिंग हमें करना, अभी ये प्रोटोटाइप क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू मीन बाय प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप होता है कि अगर आपको आपका कुछ आइडिया है, इफ यू हैव द आइडिया विथ यू एंड इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, देन दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप। उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप। जैसे कि मैं बोला कि अरे मेरे पास ऐसा कुछ आइडिया है की मैं अगर रूम में एंटर करू ना, मी जर रूम मध्ये एंटर केला तर तो लाईट ऑटोमॅटिक ऑन व्हायला पाहिजे आणि रूम सोडलं ना तर तो ऑफ व्हायला पाहिजे, हा माझी आयडिया आहे। तर इफ आय वांट टू इम्प्लिमेंट दैट आयडिया, देन विच इज द, हे एग्जांपल तर एकदम छोटा एग्जांपल दिला, बट इफ यू हैव एनी आयडिया विथ यू, देन यू कैन इजीली इम्प्लिमेंट दैट आयडिया यूजिंग द आर्डिनो। गेटिंग दिस? तो ओपन सोर्स आहे बघा, कुठेच कोणाला 1 रुपये द्यायची गरज नाहीये, ऑल थिंग्स आर फ्री, इट्स कोड इज ऑल्सो फ्री, इट्स IDE ऑल्सो फ्री, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हम उसमें प्रोग्रामिंग करोगे ना वो भी फ्री। बघा, काहीच विकत घ्यायची गरज नाहीये, just download it, use it. Yes, so it is an open source prototyping platform in electronics based on easy to use hardware and software. ये देखो, very important. ये देखो, based on easy to use hardware and the software. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकदम इजी है। ये इतना इजी है, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में, मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितना इजी है। सॉफ्टवेयर मतलब हम सिमुलेटर यूज करके उसके प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे करेंगे। देखो, within a 1 hour you can start the programming of Arduino. So Arduino is a microcontroller prototyping board which can be used in developing digital devices. ये देखो, ये प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। किस लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? To develop the digital devices that can read the input from digital as well as the analog sensor, which can further use to take action to operate some actuator. ये देखो, प्रोग्राम क्या होता है बघा। प्रोजेक्ट म्हणजे काय असतो? प्रोजेक्ट म्हणजे काय असतो की त्याला इनपुट असतं आणि आउटपुट असतात। इनपुट्स आर जनरली कॉल्ड द सेंसर. So we are getting the data from sensor, and depending on that value of the sensor, we are actuating some actuators. Actuator म्हणजे काय की ज्याला आपल्याला ऑपरेट करण्यासाठी काहीतरी द्यावं लागतं, त्याला म्हणतात actuators. आणि ज्याच्यापासून मला काहीतरी भेटतं तो म्हणतात, त्याला आपण म्हणतो सेन्सर, which are giving some data to us, that is called as sensor. And if I want to operate something, then that is called as a operator. म्हणजे त्याला मला द्यायचं आहे त्याला काहीतरी, इफ आई वांट टू एक्चुएट दैट पर्टिकुलर थिंग, आई हैव टू गिव समथिंग, मुझे उसको 1 देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? अगर वो देने के बाद में ही अगर वो काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द एक्चुएटर्स। गेटिंग दिस? तो अगर मैं इस तरीके से सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स अगर मैं इंटरफेस करूंगा एंड आई एम डिजाइनिंग सम माय कोड, मैं कुछ प्रोग्राम लिखूंगा, उसको एक कुछ इंटेलिजेंस दूंगा, देन यू कैन से दैट आई एम डेवलपिंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, और वो कौन सा है? प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट, दैट इज अ प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आर्डिनो क्यों यूज करेंगे हम? दूसरे भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द ऑन इंटरनेट।
तो उसमें से ही आर्डिनो ही क्यों सिलेक्ट किया? क्यों? क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, इट इज इनएक्सपेंसिव, ओपन सोर्स है। देखो ओपन सोर्स है, आप खुद से घर पे बना सकते हो, नो नीड टू बाय द आर्डिनो बोर्ड, डायरेक्टली आप खुद से घर पे भी बना सकते हो, व्हेरी इनएक्सपेंसिव। उसका अगर आपको प्रोग्रामिंग करणे बघा, प्रोग्रामिंग करण्यासाठी जो काही सॉफ्टवेअर येतो दॅट सॉफ्टवेअर इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट इज इनएक्सपेंसिव. सेकंड वन इज क्रॉस प्लॅटफॉर्म. हा क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहे. तर क्रॉस प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय की द Arduino software means Arduino IDE. These Arduino IDE can able to work on Windows as well as can able to work on Linux, can able to work on a Mac machine. तर बघा कोणतीही मशीन असो तुमचं, मॅक असो, लिनक्स असो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम असो, सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी Arduino is even for your mobile also. बघा Android साठी सुद्धा Arduino is available. You can program your Arduino program on a Android mobile also. So it is a cross platform आणि त्याची प्रोग्रामिंग चेंज नाही होत. असं नाही की तुम्ही विंडोज वरती प्रोग्राम करताय तर तो वेगळा प्रोग्राम, लिनक्स वरती वेगळा प्रोग्राम, असं नाहीये. So it is a cross platform. The next one is that it is simple and clear programming environment. Very simple and very clear. So as the name indicates, it will do the same thing like digital write, it write digitally, simple. As the name indicates, it that same function is doing the same thing. किती सिंपल आहे ते आपण प्रोग्रामिंगच्या वेळेला बघणारच आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज ओपन सोर्स अँड एक्सटेन्सिबल सॉफ्टवेअर. बघा याचा सॉफ्टवेअरचा जो कोड आहे, इट्स सॉफ्टवेअर कोड इज इझिली अवेलेबल अँड इट इज ओपन सोर्स. यू कॅन डाउनलोड, यू कॅन अपडेट अँड यू कॅन यूज दॅट सॉफ्टवेअर. तुम्ही स्वतः त्यामध्ये काहीतरी नवीन ऍड करू शकता, त्या सॉफ्टवेअर मध्ये नवीन ऍड करू शकता, त्याला नवीन काहीतरी टाकू शकता. ओके, दॅट इज एक्सटेन्सिबल सॉफ्टवेअर. अजून एक्सटेन्सिबल हार्डवेअर ऑल्सो, इट्स हार्डवेअर इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे हार्डवेअर तुम्हाला विकत घ्यायला फ्री नाहीये, पण त्याची डिझाईन फ्री आहे. डिझाईन वापरून तुम्ही स्वतःचा पीसीबी बनवू शकतात. तुम्ही बघू शकता, दिस इज द ऍक्च्युअली वन ऑफ द Arduino that has been made on using the झिरो पीसीबी. बघा झिरो पीसीबी वरती Arduino बोर्ड इम्प्लिमेंट केलाय. ऍक्च्युअली जर तुम्ही मार्केटमध्ये विकत घ्यायला गेला तर हा जो लेफ्ट साइडचा आहे तो मिळणार, बट द सेम thing you can implement at your home also on the zero PCB also. So its design is open source. So it extends and you can add your own more feature on that hardware also. ओके, जास्तीत जास्त फीचर त्यामध्ये देऊ शकतात. आता कोणकोणते बोर्ड्स, विच बोर्ड्स आर अवेलेबल ऑन मार्केट, इन द मार्केट, विच बोर्ड्स आर अवेलेबल. सो दी आय एम लिस्टिंग आउट ओनली द फेमस वन. जे फेमस आहेत त्यांचे लिस्ट आउट केलंय बघा मी. तर पहिलं काय आहे? पहिला आहे Arduino Uno. The first one is the Arduino Uno. Second one is the Arduino Mega. Third is the Arduino Nano. बघा शकता त्याचा साईज बघा तुम्ही. नेक्स्ट वन इज Arduino Mini. नेक्स्ट वन इज Arduino Leonardo. आणि लास्ट वन आहे तुमचा लिलीपॅड आयसी. आता लिलीपॅड आयसी जो असतो, लिलीपॅड बोर्ड, हा किती साईज असतो? 1 रुपयाचं नाणं असतं बघा, 1 रुपयाचं नाणं. त्या 1 रुपयाच्या नाण्याबरोबर 1 रुपयाचा कॉइनच्या साईजचा हा लिलीपॅड आयसी आहे. बघा किती सोपं झालं. when I need such a hardware which is having very small size, then actually I'm using an Arduino LilyPad. But generally most of times we are using Arduino. You know why? Because of its availability. Arduino LilyPad घेण्यासाठी तुम्हाला जेवढं मार्केटमध्ये सर्च करावं लागणार तेवढं इझिली तुम्हाला युनो भेटणार. युनो इज अ व्हेरी फेमस वन and every shop is having its availability. बघा युनो आपण जो प्रोग्रामिंग करणार ते युनो वरतीच करणार, पण ज्याच्या युजेस वरती बघा युनो मध्ये आयओ पोर्ट फक्त 14 आयओ पोर्ट्स आहे, आयओ लाईन्स आहे. त्या आयओ लाईन्स मला जास्त पाहिजे आहेत, देन आय एम ट्रान्सफरिंग फ्रॉम युनो टू मेगा. बघा याचे प्रत्येकाचे युजेस वेगवेगळे आहे. साईज कमी पाहिजे, एक तर मी लिलीपॅड वापरेल, एक तर मिनी वापरेल. साईज खूप मिनी असतो तो 1 इंच उंचीचा असतो, 1 इंच. इट्स साईज इज ओनली 1, लेंथ इज ओनली 1 इंच. नॅनो असतो 2 इंच. नॅनो जो असतो Arduino नॅनो हा 2 इंच साईजचा असतो. सो डिपेंडिंग ऑन व्हॉट. पण तुम्ही म्हणाल की सर मी जर बोर्ड चेंज केला, इफ आय एम चेंजिंग द बोर्ड, डज माय प्रोग्रामिंग गेट चेंजेस? नो, प्रोग्रामिंग इज नॉट चेंजेस. प्रोग्रामिंग इथे चेंज नाही होणार. प्रोग्रामिंग इज सेम.
युनो साठी जो प्रोग्राम लिहिला आहे द सेम अवेलेबल फॉर नॅनो, सेम अवेलेबल फॉर मिनी, सेम अवेलेबल फॉर मेगा. गेटिंग दिस? सो दॅट इज कॉल्ड क्रॉस प्लॅटफॉर्म. बघा, तुम्ही बोर्ड चेंज करा पण तुमचा बोर्ड चेंज करा, तुमचा प्रोग्राम नाही चेंज होणार. गेटिंग दिस? तर हे अजून काही थोडेसे आहे, यामध्ये भरपूर दिलेले आहे. यन हा दिलेला आहे. दिस यन इज हॅव्हिंग द ब्लूटूथ ॲज वेल ॲज इथरनेट. हा इथरनेटचा एक सेपरेट दिलेला आहे, Arduino Ethernet. It is having the Ethernet. It means that we can connect the internet to this Arduino Ethernet also. एक Wi-Fi वाला पण येतो, त्यामध्ये ब्लूटूथचा पण येतो. There are lots of varieties are there, lots of variety. जे तुमचे ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड असेल ते तुम्ही बोर्ड तुम्ही विकत घ्यायचा आणि त्याचा प्रोग्रामिंग करायचा. सो वी विल एक्सप्लोर वन ऑफ द Arduino बोर्ड. एक Arduino बोर्ड आपण एक्सप्लोर करू इथे, अँड दॅट इज द कॉल्ड Arduino Uno. आपण एक बोर्ड इथे एक्सप्लोर करणार आहे, Arduino Uno. Why? Because it is a very simply available. Availability is available. It is available on all the most of stores. कोणते स्टोर वरती जा इझिली अवेलेबल असेल. अँड द कॉस्ट इज नियरली अबाउट 500 रुपीज. 500 रुपयामध्ये हा बोर्ड भेटतो, पण आता नाही भेटत. जनरली ड्यू टू द लॉकडाऊन ऍक्च्युअली इट्स प्राइस गेट राइज अप टू द 1000 रुपीज. बट as soon as this lockdown get over, its price get normal to 500 रुपीज. 500 रुपयापर्यंत याचा प्राइस आहे. त्याच्या पिन आउट बघू आपण. द पिन आउट. इट्स पिन आउट बघा. पिन आउट मध्ये आपण काय भेटतं की याला आपण काय काय लावू शकतो. व्हॉट वी कॅन कनेक्ट टू Arduino Uno. इथे काय काय लावू शकणार आहे आपण. सो फर्स्टली विल सी दॅट विल स्टार्ट विथ द डिजिटल पिन्स. याला आपण डिजिटल पिन्सने आपण स्टार्ट करणार आहे. बघा, विल स्टार्ट विथ द डिजिटल पिन्स. याला डिजिटल म्हणजे काय, व्हॉट मीन बाय डिजिटल? कॅन एनीबडी टेल मी? तुम्ही सेकंड इयर थर्ड इयरचे विद्यार्थी आहे तर सांगू शकता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिजिटल अँड अनालॉग? जस्ट टाइप the answer in chat box. What is the meaning of digital and analog? This Arduino, this Atmega 328, actually this is the name of the IC your Arduino Uno is having. Atmega 328. This is the name of the IC your Arduino Uno is having. It is the digital IC. It is the digital IC. But what is the meaning of digital and analog? Yes, Chaitanya says input and outputs are in the form of 0 and 1. So if there are sensors and if there are actuators, some sensors and actuators are there, and if that sensor are giving the data in terms of 0 and 1 only. Baga, sensor in that sensors are giving the able to give the data in terms of 0 and 1. Baga, 0 and 1 मध्येच देतोय मला डेटा, तर मी त्याला काय म्हणेल, डिजिटल सेन्सर. ओके. इफ देयर आर ऍक्च्युएटर्स आर देयर दॅट इज गेट ऍक्च्युएटेड बाय युजिंग द 0 and 1. लाईक एलईडी. बघा, एलईडी ला काय करायचं, एक तर ऑन करायचं, एक तर ऑफ करायचं. ओनली 2 लेवल्स. सो इट मीन्स दॅट इज अ डिजिटल काइंड ऑफ द ऍक्च्युएटर. गेटिंग दिस? स्विच आहे बघा, स्विच मध्ये काय करतो आपण, स्विच मधून स्विच प्रेस झालाय की नाही झालाय आपण ते डिटेक्ट करणार. ओके. इफ द स्विच इज प्रेस और स्विच इज नॉट प्रेस हे आपण डिटेक्ट करणार. मग तो कोणता आला, फक्त 2च लेवल आहे, एक तर स्विच प्रेस किंवा नॉट लेवल. ओनली 2 लेवल्स आर देअर. सो दॅट इज अ काइंड ऑफ द डिजिटल सेन्सर. असे काही डिजिटल सेन्सर किंवा डिजिटल ऍक्च्युएटर असतील, अँड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट दॅट डिजिटल सेन्सर और ऍक्च्युएटर टू Arduino Uno, then you can use these digital pins. कोणकोणते डिजिटल पिन्स आहे? बाय लुकिंग ऍट द बोर्ड और बाय लुकिंग ऍट द स्लाइड, can you tell me, can anybody tell me what is the name of the digital pins available in Arduino Uno? सांगू शकता? बघा, तुम्ही स्लाइड वरती बघा आणि मला सांगायचं आहे. यस, अमित, आदित्य, अश्विनी, धीरज, नदीम, Manisha, Megha. While looking at the slide, just tell me what are the pins available? What are the pins available? What is the name of that pins? कौन सी साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में. दिस कॉल्ड डिजिटल पिन्स. देखो यहाँ पे दिए डिजिटल पिन्स. यस, Dheeraj is correct. 0 to 13. Pin number 0 to pin number 13. Pin number 0 to pin number 13. These are the digital pins. कितने पिन है? 0 to 13. टोटल कितने हो गए? 14. सो आई हैव टोटल 14 IO लाइंस. IO मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट लाइंस. कितना है इनपुट? मतलब क्या है कि इनपुट मतलब सेंसर्स,
आउटपुट मतलब एक्चुएटर्स। ओके, तो बताओ कि हाउ मेनी सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स वी कैन कनेक्ट, कितने सेंसर एक्चुएटर कनेक्ट कर सकता हो अभी, डिपेंडिंग ऑन दी सेंसर पिन। अगर इफ द सेंसर इज ओनली टेकिंग ओनली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट दे रहा है, तो आप क्या कितने कर सकते हो, हियर वी कैन कनेक्ट 14 सेंसर्स और वी कैन कनेक्ट द 14 एक्चुएटर्स कर सकते हो। गेटिंग दिस? सो टोटल 14 digital IOs are available. But out of that, as the Smita says, there is the first two pins are there. First two pins are called as a TX and RX. पहिल्या दोन पिन कोणत्या आहे बघा, पहिल्या दोन पिन आहे, एक आहे RX आणि दुसरी आहे TX. RX आणि TX काय असतो, काय काही सांगू शकता, कोणी सांगू शकतं? What in by RX and what in by TX? Yes. Okay, you can unmute yourself and tell me the answer. जर टायपिंग करायला वेळ लागत असेल, you can unmute yourself and tell me the answer. What is the RX and TX and what is the use of it? याचा यूज काय आहे? To receive and transmit the signal. For that Receive the purpose, we use transmitter, RX. What that kind of signals. signal? What kind of signal? It can be a digital signal or the analog signal as well. We No, are no. the PWM. It is it is a digital pins only. Okay, so it can only able Yeah, to it send can, 0 and yeah. 1 only. Okay, you're not Yeah. sending the analog one. So, but what is the meaning of TX and RX? Receiving and transmission pin. Actually, it is related to the communication. It is related to the communication. Now, what kind of communication? Actually, there are two kind of communication: parallel communication, and the second one is serial communication. It is called the serial communication. Now, what is the parallel and serial? क्या होता है? Parallel communication मतलब क्या है? Suppose if I have the 8-bit data, मेरे पास 8-bit data है, अगर मुझे parallel communication से मुझे वो send करना है, parallel communication से मुझे 8-bit data send करना है, so how many IO lines I need? Tell me. 8-bit data है और मुझे यूज करना है parallel communication. So how much IO lines I need? Yes, चैतन्य correct. I lines 8 IO lines. कितने लेंगे? 8 IO lines. मुझे 8 IO lines, क्योंकि एक साथ parallel मतलब एक साथ सेंड करना है. ओके, अभी दूसरा टाइप होता है सीरियल कम्युनिकेशन. सीरियल क्या करता है? सीरियल बोलता है कि 8 लाइंस नहीं है, मेरे पास एक ही लाइन है, सेंड करने के लिए एक ही लाइन है, रिसीव करने के लिए एक ही लाइन है. तो सेंड करने के लिए एक ही लाइन मतलब ट्रांसमिशन के लिए एक ही लाइन है TX, रिसीव के लिए दूसरा लाइन है रिसीव. ओके, तो ट्रांसमिशन के लिए आई एम यूजिंग द TX लाइन, and if I have the 8-bit data to transmit, so in what way I am sending? मैं 8-bit data कैसे सेंड करूंगा? Bit by bit. पहले बिट से 1 बिट सेंड करूंगा, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, पांचवा बिट, इस तरीके से all 8-bit I am sending. Getting this? So this is called as serial communication. Serially I am sending the data. Now what is the advantage of serial communication over the parallel? क्या advantage होगा फिर? I need only a single IO line. एक ही IO line से मैं मेरा 8 बिट का डेटा सेंड कर सकता हूँ. पैरेलल का डिसएडवांटेज क्या है? पैरेलल का डिसएडवांटेज है कि मुझे 8 IO लाइंस आई एम वेस्टिंग, 8 IO लाइंस आई एम वेस्टिंग. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन? What is the disadvantage of the serial communication? It is slow. It is slow, but the parallel communication is fast. Parallel is fast, serial is slow. क्योंकि ये देखो पैरेलल में 8 बिट डेटा एट अ टाइम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक बिट जाएगा. ओके, तो जाने के लिए आने के लिए सब कुछ टाइम लगेगा. सो इट इज स्लो. सो स्लो, serial communication is slower than the parallel communication. Getting this? तो देखो TX और RX दोनों अलग अलग दिए. देखो, so it means that this will supporting the full duplex kind of the communication. फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगा. भाई फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम ये जो है ना, ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है. एट अ टाइम ट्रांसमिशन रिसीवर इज पॉसिबल, देन यू कैन से दैट इज सपोर्टिंग द फुल डुप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. देखो डिजिटल पिंस तो 0 to 14 है, उसमें से 2 पिंस तो सीरियल के लिए चले गए, उसमें से और 6 पिंस होते हैं PWM के लिए. PWM होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन. अभी इसका पल्स विथ मॉड्यूलेशन मतलब क्या है कि उसके ऊपर मैं कोई स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं रिसेंड करूं, तो उसका जो विड्थ होता है, पल्स का विड्थ, ऑन टाइम और ऑफ टाइम का वो विड्थ होता है ना, दैट ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम आई कैन कंट्रोल. उसका वेट में चेंज कर सकता हूँ, उसका वेट में चेंज कर सकता हूँ. तो ये किस लिए होता है? एक्चुअली देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ PWM.
एक होता है उसका द एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल, दूसरा होता है टू वेरी द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर. दीज आर द अगेन देयर आर सेवरल एप्लीकेशन. तो ये पूरे आप ये अगर करने के लिए मेरे पास कितने पीडब्ल्यूएम पिंस है, टोटल 6 पीडब्ल्यूएम पिंस आर देयर. आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे एनालॉग पिंस इसी तरीके से देयर आर सेवरल जैसे डिजिटल पिंस है वैसे सेम एनालॉग पिंस भी. तो एनालॉग पिन कौन कौन से? व्हाट आर द डिफरेंट एनालॉग पिंस? द एनालॉग पिंस आर द A0 to A5. द एनालॉग पिंस आर A0 to A5. अभी एनालॉग और डिजिटल में थोड़ा डिफरेंस पहले लेते हैं. डिजिटल पिन का हमने देखा इट कैन एक्सेप्ट ओनली 0 and 1, बट द एनालॉग इनपुट कैन एक्सेप्ट एनी वोल्टेज. इसको हम कोई भी वोल्टेज दे सकते हो, जैसे 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज. I can give any analog voltage to this. तो ये एनालॉग वोल्टेज किससे जनरेट होगा? ये एनालॉग वोल्टेज किससे जनरेट होगा? एक्सटर्नली आएगा. एक्सटर्नल ये इनपुट है ना, मतलब ये आर्डिनो को मिल रहा है. किससे मिल रहा है? कोई दूसरे डिवाइस से. अभी जो देता है वो क्या होता है? जो दे रहा है ना वो क्या होता है? वो बोलते हैं सेंसर. उसको हम बोलेंगे सेंसर. जो दे रहा है ना उसको हम बोलेंगे सेंसर. ओके, तो मतलब if your sensor is having the output as an analog, that sensors are connecting to this analog in. अभी एनालॉग इन को ही क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा जो आईसी है ATmega 328 दैट इज द डिजिटल आईसी है. डिजिटल आईसी उसको सिर्फ क्या समझ में आता है? उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, 0101 का लैंग्वेज. लेकिन ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये 01 है क्या? 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? 0 वोल्ट. 1 क्या होता है? 5 वोल्ट. तो 0 या 5 अगर है तो डिजिटल में दो. लेकिन अगर अंदर उसके बीच में कुछ भी डेटा है अगर आपके ऊपर, तो क्या देना है आपको? वो डेटा आपको देना है A0 to A5 में. तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ इंटरनल एडीसी इज देयर. एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है. वो एडीसी क्या करता है? एडीसी क्या करता है? जो भी एनालॉग वोल्टेज आएगा ना दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल एंड दैट डिजिटल विल प्रोवाइडेड टू द माइक्रोप्रोसेसर. ये माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड किया जाएगा. And using that digital device, using that digital value, ये digital value यूज करके ये फर्दर प्रोसेस करेगा. ओके, तो ये क्यों है? सिर्फ ये किस लिए है? कि सिर्फ इंटरफेस बदलने के लिए. देखो इट इज इंटरमीडिएटर. मुझे प्रोसेस करने के लिए डिजिटल डेटा चाहिए लेकिन मेरे पास है एनालॉग, तो मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा उसका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. तो याद रखना है कि इफ यू हैव द सेंसर ऑफ काइंड टाइप ऑफ द एनालॉग देन कनेक्ट दैट टू द एनालॉग. गेटिंग दिस? अब इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास यूएसबी दिया है. देखो यूएसबी हम क्या करेंगे? वो यूएसबी हम कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के यूएसबी को. जैसे ये वायर से कनेक्ट करेंगे हम, तो क्या होगा? इसके अंदर एक जो पावर इंडिकेटर है दैट पावर इंडिकेटर लाइट विल बी ग्लो देयर. यहाँ पे एक पावर इंडिकेटर, एक ब्लू कलर का लाइट होता है, ग्लो हो जाएगा. ब्लू या ग्रीन कलर का होता है. ओके, ये होता है. गेटिंग दिस? Arduino analog output, yes, and Arduino is also having a DAC. These PWM pins are working as the DAC, digital to analog PWM pins. So you can say that the Arduino is having the 6 DAC pins. Arduino is having the 6 DAC. DAC is called as the digital to analog voltage. अगर आपके पास आउटपुट आपको ऑपरेट करना है which are giving the आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज में आउटपुट देता है. फॉर एग्जाम्पल उसको 1 वोल्ट भी चाहिए, 2 वोल्ट भी चाहिए, 3 वोल्ट भी चाहिए, 4 वोल्ट भी चाहिए, डिफरेंट. सिर्फ 0 और 5 नहीं चाहिए. तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू कनेक्ट दैट एक्चुएटर्स ऑन अ PWM. सो Arduino कैन एबल टू गिव द एनालॉग आउटपुट आल्सो बाय यूजिंग द PWM pins. आर यू गेटिंग, चैतन्य? So there are 2 LEDs are there, RX and TX LED. These LEDs are generally representing that if you are doing a serial transmission or reception, then this LED will be blinking. ये LED blink होता है. ट्रांसमिशन चल रहा है तो TX blink होगा, रिसेप्शन चल रहा है तो रिसीव ब्लिंक. दिस इज ओनली फॉर इंडिकेशन. ये इंडिकेशन के लिए ये कौन सा जो कम्युनिकेशन चल रहा है, RX चल रहा है या यार रिसेट पिन भी होता है इसके ऊपर, रिसेट स्विच. ये रिसेट स्विच अब दबाओगे ना तो क्या होगा? व्हाटएवर द प्रोग्राम इट इज रनिंग, एक्चुअली इट
get restarted, not erased, it is get restarted. There are some power pins are also there, power pins. अब ये power pins क्या होती है? Power pin, it is used for providing the power supply to external devices. देखो मेरे पास एक कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, उसको पावर सप्लाई लग रहा है, उसको 5 वोल्ट लग रहा है, तो आई कैन प्रोवाइड दैट फ्रॉम दिस वन. ये 5 वोल्ट होता है ना, आउटपुट पिन होता है, ग्राउंड होता है, आउटपुट पिन होता है, ये पावर इनपुट होता है, ये वी इन होता है. चलिए we will see this more about, ये हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. We will see the detail of each and every component of the Arduino Uno in our internship. जब हम internship में करते हैं ना, तो उसमें पूरा का पूरा एक एक component, because to explain this board I required at least 1.5 hour, 1.5 hour पूरा से पूरा explanation कर ले. Okay, तो देखो हमने ये पहले ऑलरेडी स्लाइड देखा हुआ है कि ये जो Arduino Uno आता है मार्केट से अगर लोगे तो ये टाइप का आएगा, लेकिन नॉट, यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन ऑल्सो. आप खुद का Arduino Uno भी कर सकते हो. इसके लिए आपको आईसी खरीदना पड़ेगा, ATmega 328 ये आईसी खरीदना पड़ेगा, विद द बूटलोडर आईसी आपको खरीदना पड़ेगा. So which are the different projects, which are the different projects that we can do using Arduino? कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे. This is not the only list, बहुत सारे. Just like I'm giving only some list here. मैंने थोड़ा सा लिस्ट आउट किया. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आई कैन डू डिजिटल थर्मोमीटर, RFID बेस्ड डोर लॉक, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन, फायर फिंगरप्रिंट बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म, then writing and drawing machine, home automation system, different types of robot like edge detection robot, obstacle avoidance robot, line follow robot, any kind of robot we can design using the Arduino. And any idea, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है ना, वो सब कुछ आप एज ए स्मार्ट डस्टबिन आपको करना है. आप उसके पास जाओगे ना तो ऑटोमेटिक ओपन होगा. So that can also be implemented using the Arduino. So any small idea you can implement using the Arduino. अभी नेक्स्ट डे आपका हम क्या करेंगे, आज है ना सर ने, मैंने बोला था कि सर हम एक एक्चुअल एग्जांपल भी देखेंगे, हाउ टू यूज द एक्चुअल Arduino यू ऑन अ सिमुलेटर. एक सिमुलेटर करेंगे हम, एक सिमुलेटर यूज करेंगे, एंड दैट इज अगेन द, यू कैन से दैट you can start your Arduino programming from that simulator, and the name of the site from where you are getting the that simulator, the name is the tinkercad.com. उसका नाम क्या है? tinkercad.com. tinkercad.com के ऊपर जब जाओगे आपको साइन अप करना पड़ेगा. एक्चुअली आई ऑलरेडी साइन, मैंने यहाँ पे साइन अप किया है, तो मैंने साइन इन किया यहाँ पे. उसके बाद में आफ्टर साइन इन एक्चुअली you will get this kind of the page here. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3D डिजाइन में नहीं जाना है, सर्किट में जाना है. So I want to start a new circuit. So these are some different types of the circuits I have already built. बट मुझे नया सर्किट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू सर्किट. जैसे आप क्रिएट न्यू सर्किट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक वर्क एरिया मिल जाएगा कि जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और वहां पे हार्डवेयर आपको इंटरफेस भी कर सकते हो. अभी देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या. तो ये देखो सबसे पहले होता है ये ऊपर वाला, सिजलिंग अमूर इसबू. दिस इज द नेम, ऑटोमेटिक रैंडम नेम गिवन टू योर सर्किट. तो मुझे क्या करना है, वो रैंडम नेम नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन वाला करना है. तो मैं यहाँ पे ब्लिंकिंग एलईडी का एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ. तो मैंने आपको इसको रीनेम कर दिया, तो उसको नाम दे दिया रीनेम. ओके, दीज आर द डिफरेंट सेवरल आइकॉन्स आर प्रेजेंट. इसके ऊपर अगर आप माउस लोगे ना तो वो बोलेगा कि ये क्या है. ओके, तो जस्ट लाइक दिस वन, वायर का कलर, अगर कोई वायर लेता हूँ मैं, उसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. आर यू गेटिंग दिस? अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट वन, अभी आप यहाँ में, अब नाउ दिस इज द सिमुलेटर. सिमुलेटर में क्या होता है, सिमुलेटर में होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. वे कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट हम जो रियल में यूज करते हैं ना, सेम व्हाट काइंड ऑफ द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल फॉर द सिमुलेशन पर्पस. तो एक एक करके देखते हैं. दीज आर द बेसिक कंपोनेंट. अगर आपको सभी के सभी कंपोनेंट देखने हैं तो ऑल में जाना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू द ऑल. जैसे आप ऑल में जाओगे ना, सो ऑल कंपोनेंट्स गेट
displayed here. So what kind of components are there? तो सबसे पहले आप देखो कौन सा कंपोनेंट है, इसमें रजिस्टर भी अवेलेबल है, देखो रजिस्टर है, इसमें कैपेसिटर भी है, इसमें पोलराइज कैपेसिटर है, डायोड भी अवेलेबल है, जिनर डायोड है, इंडक्टर अवेलेबल है, इसमें पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर भी दिया है, देखो पुश बटन पोटेंशियोमीटर, स्लाइड स्विच भी दिया है, फोटो रजिस्टर भी दिया है, मतलब इट इज कॉल्ड एज एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, फोटो रजिस्टर भी दिया है, फोटो डायोड भी दिया है, देखो एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिया है, फ्लेक्स सेंसर दिया है, फोर्स सेंसर दिया है, आईआर सेंसर दिया है, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर दो टाइप की दिए, 3 पिन वाला भी है, 4 पिन वाला भी है, उसका पीआईआर सेंसर, मोशन सेंसर बोलते हैं इसको, मोशन सेंसर भी दिया है, टिल्ट सेंसर भी दिया है, देखो टिल्ट सेंसर क्या करता है, कैसे वर्क करता है, जब भी एक आप टिल करोगे ना उसको, तब ये पैरेलल अगर एक ही लाइन का है तो नहीं, उसको आउटपुट 0 आता है, जैसे टिल हुआ ना, सो एक्चुअली देयर इज अ कनेक्शन इज मेड बिटवीन दिस टू वायर। ओके, तो टिल सेंसर भी है, टिल सेंसर 4 पिन वाला भी है, टेम्परेचर सेंसर भी दिया है TMP36, गैस सेंसर भी है यूजिंग विच वी कैन डिटेक्ट द गैस। ओके, कीपैड दिया है, DIP स्विच दिया है, सो लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर गिवन हियर। लाइक आउटपुट कंपोनेंट्स में अगर आप जाओगे तो उसमें LED भी दिए, देखो तो एलईडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलईडीज आर देयर, जैसे कि अगर आपको ये एलईडी आपको यूज करना है तो क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पे जाके आपको प्लेस करना है। ओके, जैसे आप प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा और आप बोलोगे ओके अभी इसका कौन सा कलर चाहिए, मुझे ऑरेंज कलर का एलईडी चाहिए तो जस्ट चेंज इट टू ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का आ गया, अगर मुझे व्हाइट कलर का चाहिए तो मैं व्हाइट कलर का आ गया। ओके, so I can select any color LED here. Okay, RGB LED भी दिया, RGB में क्या होता है कि 4 पिंस होते हैं, 4 पिन में से एक कॉमन होता है और 3 जो होता है RGB वाले होते हैं, R मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। लाइट बल्ब भी दिए, देखो सिमुलेशन के लिए लाइट बल्ब दिया है, न्यू पिक्सल दिए है, न्यू पिक्सल जो है ये न्यू पिक्सल के सभी LED दिए है। उसके बाद में वाइब्रेशन वाला मोटर दिया है, इट विल वाइब्रेट व्हेन यू अप्लाई द वोल्टेज सोर्स हियर, पावर सप्लाई इसको देंगे तो वाइब्रेशन जनरेट होगा। डीसी मोटर दिया है, डीसी मोटर विद इनकोडर दिया है, फिर माइक्रो सर्वो मोटर दिया है, और उसके बाद में गियर मोटर दिया है, पीजो बजर दिया है, IR रिमोट दिया है, 7 सेगमेंट दिया है, LCD भी दिया है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई गिवन है, 9 वोल्ट का बैटरी दिया है, 1.5 वोल्ट का बैटरी दिया है, कॉइन सेल दिया है, पोटैटो बैटरीज भी दी है। ब्रेडबोर्ड अगर आप देखो तो 3 टाइप के ब्रेडबोर्ड दिए जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड एज दिस 800 पिन ब्रेडबोर्ड, ये बड़ा वाला ब्रेडबोर्ड, ये छोटा वाला ब्रेडबोर्ड होता है वो 400 पिन का ब्रेडबोर्ड, छोटा उससे भी छोटा 200 पिन का ब्रेडबोर्ड मिनी भी दिया है। ओके, सो माइक्रो कंट्रोल, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोल्स आर गिवन बट वी आर यूजिंग हियर आर्डिनो यूनो यूज करेंगे। उसमें अभी देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिए इसमें, जैसे कि मुझे मेजर करना है कोई भी वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है किसी रजिस्टर के ऊपर तो मेजर करना है, सो देयर इज अ मल्टीमीटर इज आल्सो गिवन। कोई है सपोज ऐसा कोई डिवाइस है उसको पावर देना है तो पावर सप्लाई इज आल्सो गिवन। फंक्शन जनरेटर टू जनरेट द स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी, साइन वेव फ्रीक्वेंसी या ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी, द फंक्शन जनरेटर इज आल्सो गिवन। ऑसिलोस्कोप भी दिया है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज आर आल्सो गिवन, लाइक टाइमर आईसी दिया है, ड्यूअल टाइमर, ओपैम्प, ड्यूअल कंपैरेटर, ऑप्टो कपलर। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर आल्सो गिवन। ये देखो कल सर संजय चौधरी सर ने जो सिखा है ना, उसका अगर आपको सिमुलेशन करना है, आपके पास रियल हार्डवेयर नहीं है, आपको चेक करना है सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं, सो यू कैन डिजाइन दैट सर्किट ऑन दिस टिंकरकैड आल्सो। सो लॉट्स ऑफ हार्डवेयर इज गिवन, लॉट्स ऑफ 5 वोल्ट रेगुलेटर दिया है, 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर दिया है, मोटर ड्राइवर आईसी दी है, L293D दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आर गिवन। लॉजिक आईसी जो डिजिटल आईसी आप फर्स्ट ईयर में सीखते हो, देखो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, इसके भी अगर प्रैक्टिकल आपको करना है तो ये प्रैक्टिकल भी आप इसमें कर सकते हो। सो देयर आर सेवरल आईसीज इज गिवन हियर, वे आपको जो भी चाहिए ना वो मैक्सिमम अवेलेबल है, और जो नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है वो क्या करना है, आपको रियल में करना होगा, बिकॉज इट्स सिमुलेशन, इसमें आप नया नहीं डाल सकते हो, जिसमें जो अवेलेबल है ना वही आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक सर्किट पहले मैं डिजाइन करके दूंगा, वो सर्किट होगा एक एलईडी लेंगे, एक रजिस्टर लेंगे और एक बैटरी लेंगे, और बैटरी से हम एलईडी ऑन करना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, आई रिक्वायर द ब्रेडबोर्ड, आई रिक्वायर ब्रेडबोर्ड। So how many of you have used the breadboard? Just type yes in chat box. अगर किसी ने breadboard अब कभी यूज किया है तो just type yes in chat box. Otherwise just type no in chat box.
Yes, okay. So what is breadboard? Breadboard is also used for the prototyping. ये क्या होता है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन बना भी सकते हैं और उसका काम होने के बाद में उसको निकाल भी सकते हैं। तो रीयूजेबल प्लेटफॉर्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक एलईडी दूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक एलईडी लिया, ओके, यहाँ पे एलईडी लिया। ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, बट यू कैन सी हियर, जब मैं माउस पॉइंटर लूँ ना तो ये इसको ये दिखा रहा है कि कौन सा कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, मतलब दिस वर्टिकल लाइंस आर कनेक्टेड और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कनेक्टेड। देयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कनेक्टेड। इसका मतलब है कि अगर उसका एनोड से अगर मुझे कनेक्शन लेना है तो ये एनोड है, एनोड टर्मिनल, तो ये 4 लाइंस अवेलेबल है अभी। तो टू मेक अ कनेक्शन टू एनोड देयर आर 4 लाइंस और 4 होल्स आर अवेलेबल। तो मुझे कैथोड को मुझे एक रजिस्टर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर लूंगा। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लिया और मैंने यहाँ पे कैथोड को मैंने एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हो गया, मेरा कनेक्शन हो गया। अभी क्या करना है, मुझे एक बैटरी लेना है। तो मैं एक बैटरी यहाँ पे लूंगा, मैं एक बैटरी लूंगा। सपोज मैं 9 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ, 9 वोल्ट का बैटरी, थोड़ा सा बड़ा वाला। ओके, तो देखते हैं कि एक्चुअली ये काम करता है कि नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका निगेटिव सप्लाई ना, ये ब्रेडबोर्ड के निगेटिव सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। सो दिस माय बैटरी, दिस माय बैटरी। तो ये देखो, ये निगेटिव है, इट इज कनेक्टेड टू द निगेटिव। वायर का कलर आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करना है, जहां से जिस टर्मिनल से आपको वायर लेना है ना, क्लिक करना है। अभी क्लिक करने के बाद में दबा के नहीं रखने पॉइंटर, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ओके, कहीं पे भी ले जा सकते हो। अभी इसका कनेक्शन किधर करना है, ये वीसीसी में, तो मैंने यहाँ पे वीसीसी में दिया। कलर मैं करूंगा रेड कलर। तो देख सकते हो, यूजिंग दैट कलर आई कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इज इट वीसीसी और इज इट ग्राउंड। तो ऊपर वाला है ना ग्राउंड है और नीचे वाला क्या है, वीसीसी है। तो देखो एनोड टर्मिनल है ना, द एनोड टर्मिनल आई वांट टू कनेक्ट टू एनोड टर्मिनल किसको कनेक्ट करना होगा, यस टेल मी। एनोड टर्मिनल ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड टू वीसीसी और ग्राउंड, यू टेल मी। एनोड टर्मिनल ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड टू वीसीसी और ग्राउंड, यस इट इज कनेक्टेड टू वीसीसी बिकॉज एनोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में लगाना पड़ेगा। देखो जो डायोड होगा ना, एलईडी क्या होता है, एक डायोड ही होता है। डायोड को काम अगर में लाना है तो क्या करना होगा, उसको फॉरवर्ड बायस में लगाना होता है। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, कैथोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, कैथोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो ये मैंने ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद में मुझे करना है, एक रेड वायर लेना है और मुझे ये जो एनोड है ना, दिस एनोड आई हैव टू कनेक्ट टू द वीसीसी। तो ये एनोड मैंने वीसीसी को कनेक्ट कर दिया। गेटिंग दिस। अगर आपको रजिस्टर का वैल्यू चेंज करना है तो यू यहाँ पे क्लिक करो और रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो किलो ओम, मेगा ओम, पिको ओम, मेगा गीगा ओम, सब कुछ में दिया है। तो मैं बाय डिफॉल्ट 1 किलो ओम का है वही रख रहा हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो एलईडी ऑन हो गया। देखो, तो एलईडी गेट ऑन। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिमुलेशन। ये सिमुलेशन होगा। अभी मुझे करना है कि एक मुझे मल्टीमीटर लेना है और उसको मुझे करना है कि ये जो एलईडी हो रहा है, एलईडी है ना, उसमें से कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो चेक करना है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करना होगा, मल्टीमीटर शुड बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। मल्टीमीटर कैसे कनेक्ट करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया। देखो, तो व्हेन आई स्टार्ट सिमुलेशन आई एम गेटिंग दैट हाउ मच ऑफ करंट गेट फ्लोइंग थ्रू द दिस एलईडी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 7.04 मिली एम्पियर। दिस मच ऑफ करंट गेट फ्लोइंग। आर यू गेटिंग दिस? समझता है? सो वेरी सिंपल। whatever the actually you are having the circuit, simple circuit you can implement and you can see here the LED will be glowing here. आप जब स्टार्ट सिमुलेशन करोगे ना तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। स्टार्ट सिमुलेशन करोगे तो फिर से ग्लो हो जाएगा। स्टॉप सिमुलेशन करोगे तो एलईडी हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन यूज द मल्टीमीटर, यू कैन यूज द ऑसिलोस्कोप, जो भी अवेलेबल डिवाइसेस है ना, दैट ऑल द डिवाइसेस यू कैन इजीली यूज हियर। सो आई एम रिमूविंग दिस वन और हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, अभी हम ये प्रोग्राम करेंगे। विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ आर्डिनो। आर्डिनो का प्रोग्राम करना है। तो आर्डिनो का प्रोग्राम करने के लिए आई नीड आर्डिनो। तो ये आर्डिनो टाइप किया मैंने और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वही सेम मैं यहाँ पे मैंने अपने वर्क एरिया में मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। हो गया, मेरा काम हो गया। ओके, अभी क्या करना है, आर्डिनो इज प्रोवाइडिंग द पावर सप्लाई। मुझे पता है आर्डिनो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो देखो, आप ग्राउंड यहाँ से लेंगे एंड यू आर गिविंग द ग्राउंड टू द
It is just like your hardware connection you are doing in a real time. अब real time में आप क्या करते हो जनरली? अगर आप देखो ना तो रियल टाइम में आप इस तरीके से ब्रेडबोर्ड आपके पास होता है और इस तरीके की वायर होती है, इस तरीके की वायर होती है। तो आप जनरली क्या करते हो, आप यहाँ से एक वायर लगाया और सपोज एक दूसरे जगह आपने एक यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, सो यू आर यूजिंग दिस वायर। तो सेम आप यहाँ पे कर रहे हो बाय यूजिंग द दिस सिमुलेशन। सिमुलेशन में भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखता है, आपको नहीं लगेगा कि ये सिमुलेशन चल रहा है। आपको क्लिक माउस से सिर्फ आपको वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ये क्या, ये ग्राउंड है तो उसका कलर क्या चाहिए, कलर ब्लैक चाहिए, तो मैंने कलर ब्लैक कर दिया। गेटिंग दिस? अभी मुझे क्या करना है, ये जो एलईडी है ना, एलईडी ग्लो करना है, एलईडी ग्लो करना है। अगर मैं इसको डायरेक्टली 5 वोल्ट अगर मैं दे दूं, बघा 5 वोल्ट जर याला मी डायरेक्टली देऊन टाकला तर काय होणार, 5 वोल्ट मी डायरेक्ट याला देऊन टाकला तर काय होणार, तिथे एलईडी परमानेंटली ग्लो राहणार। तो एलईडी विल बी परमानेंटली ग्लोइंग। मुझे परमानेंटली ग्लोइंग नहीं चाहिए, मुझे एलईडी मुझे परमानेंटली ग्लोइंग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एलईडी है ना उसको ब्लिंक कराना है, एलईडी ब्लिंक करना है। एलईडी क्या होगा, पहले ऑन होगा उसके बाद में ऑफ होगा, एलईडी ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, इस तरीके से करना है। तो कैसे कर सकते हैं एलईडी ऑन ऑफ ऑन ऑफ? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले ये जो एलईडी का एनोड है ना, कैथोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ओके, क्या ये देखो, ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द रजिस्टर टू कैथोड। ओके, अभी एनोड है, एनोड अगर मैं 5 वोल्ट को करूंगा तो ये परमानेंटली ऑन हो जाएगा, मुझे परमानेंटली नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा वन ऑफ द डिजिटल आईओ पिन। वो डिजिटल आईओ पिन मैं करूंगा, मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो एक ग्रे मतलब क्या है कि एनोड इज नाउ कनेक्टिंग टू पिन नंबर 13। एनोड इज नाउ कनेक्टिंग टू पिन नंबर 13। तो बोलो अभी आपको बताना है, अगर मुझे मला जर इथे जो एलईडी आहे तो एलईडी ऑन करायचा आहे, आय वांट टू स्विच ऑन द एलईडी, तो पिन नंबर 13 क्या चाहिए, पिन नंबर 13 ये डिजिटल है तो डिजिटल में दो ही वैल्यू दे सकते, एक तो 0 दे सकते, एक तो 1 दे सकते। तो बोलो पिन नंबर 13 को 0 देना है या 1 देना है? 1 यस करेक्ट, 1 देना। 1 मतलब क्या होता है, 1 1 क्या 5 वोल्ट, 1 मतलब क्या है 5 वोल्ट। व्हाट इज 1? बाइनरी 1 और डिजिटल 1 इज 5 वोल्ट। तो मतलब क्या है, आपका कनेक्शन डायग्राम कैसे हो जाएगा, कैथोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड एनोड इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग से पिन नंबर 13 को आपको 1 देना होगा, प्रोग्रामिंग से देना पड़ेगा। ओके, अभी एलईडी ऑफ करना है, सेकंड टाइम एलईडी ऑफ करना है, सांगा तर सेकंड टाइम एलईडी ऑफ करण्यासाठी काय करावं लागेल, पिन नंबर 13 ला आपल्याला काय द्यावं लागेल? आता पिन नंबर 30 ला फक्त दोनच व्हॅल्यू देऊ शकतो आपण, आई कैन गिव 1, आई कैन गिव 0। सो अगर ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 दूंगा। तो 0 मतलब ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड मतलब आप देख सकते हो कैथोड को भी ग्राउंड है, एनोड को भी ग्राउंड है। अगर कैथोड को भी ग्राउंड है, एनोड को भी ग्राउंड है, तो एलईडी ऑन होगा क्या? नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस ही नहीं होगा उसका। गेटिंग दिस? गेटिंग दिस? तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में करने के लिए पिन नंबर 13 को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, मतलब 1 करना पड़ेगा, और ऑफ करने के लिए 0 करना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट विद द कोड। ये कोड हम करते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि प्रोग्राम लिखना है हमें। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोग्रामिंग। अभी प्रोग्रामिंग कितना इजी है आप देख लो, एक्चुअली इट इज C++ प्रोग्रामिंग। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग द C++? कितने लोगों को C++ या सी लैंग्वेज आता है? मी सर। कितने लोगों को? या जस्ट टाइप मी, मुझे काउंट करना है, जस्ट टाइप मी इन चैट बॉक्स। 4 5 6, ओके यस ओके। सो सी लैंग्वेज इतना आपको मतलब डीप में अगर आपको नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, हाउ टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन कैसे कॉल करे, एंड हाउ टू राइट अ फंक्शन। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ अगर नाही भी मालूम पड़ा तो भी आपको ठीक है। तर बघा आता प्रोग्रामिंग कशी करायची आहे बघा, इन सी एंड C++ विच इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन, कौन सा फंक्शन राइट करना पड़ता है बोलो? सी और C++ का प्रोग्राम अगर हम करेंगे तो कौन सा फंक्शन हम लिखते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, मेन फंक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे कोई मेन फंक्शन है क्या? यहाँ पे तो कोई मेन फंक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, मेरे पास दो ही फंक्शन है, सेटअप और लूप फंक्शन।
तो मेन फंक्शन कहाँ पे है, बैकग्राउंड में होता है मेन फंक्शन, लेकिन फ्रंट एंड में हमें दो ही फंक्शन लिखने होते हैं। दिस इज द फ्रंट एंड, बैकग्राउंड का कोड अलग है, बैकग्राउंड का कोड अलग है। फ्रंट एंड में हमें दो फंक्शन लिखने होते हैं। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड एज सेटअप फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होता है, सेटअप फंक्शन। दूसरा होता है लूप फंक्शन। अब ये सेटअप और लूप क्या होते हैं, सेटअप आणि लूप काय असतो ते आपण बघूया बघा। आता सेटअप फंक्शन इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड बाय द आर्डिनो। सेटअप फंक्शन काय असतो, पहिलं फंक्शन है, इट इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड बाय द आर्डिनो, लेकिन कितने टाइम, कितने बार, एक ही बार। सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड वंस, इट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड वंस। एक ही बार कॉल होगा और सबसे पहले कॉल, सबसे पहले और एक ही बार। तो जो भी कोड आपको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है वो स्टार्टिंग में करना है। तो जो आपको स्टार्टिंग में करना है ना, सेटअप वाला, सेटअप मतलब क्या है, जो भी हम कोई भी इवेंट स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले हम टेबल लाते, कुर्सी लाते, एक ही बार, दैट इज वी आर डूइंग द सेटअप। तो एक जो भी कोड हमें एक बार करना है वो हम कर देंगे सेटअप में। जो कोड आपल्याला एकचदा एक्झिक्यूट करायचा आहे तो मी लिहून टाकेल सेटअप मध्ये। आता बघा कोणता कोड मला एकचदा लिहायचा आहे। ओके, सो दिस एनोड ऑफ दिस एलईडी इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 13। तो पिन नंबर 13 क्या है, IO है। पिन नंबर 13 क्या है, डिजिटल IO, I/O, मतलब इनपुट भी है या आउटपुट भी है। तो हमें कौन सा कन्फ्यूर करना है। अभी एलईडी क्या है, एलईडी सेंसर है, एक्चुएटर से, टेल मी। LED is a sensor or actuator? LED is a sensor और actuator। LED से डेटा मिलता है या LED को देना पड़ता है, सांगा। LED is a sensor or actuator? It is actuator, yes correct नवनाथ चैतन्य, इट इज एक्चुएटर। अभी देखो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर है, एक्चुएटर है मतलब उसको देना पड़ेगा। तो आउटपुट तो पिन नंबर 13 ना, उसके बाहर डेटा जाएगा। तो ये क्या करेगा, हम करेंगे यूजिंग द फंक्शन पिन मोड फंक्शन। ये पिन मोड का फंक्शन है। पिन मोड फंक्शन से हम डिफाइन करेंगे कि अभी 13 नंबर है ना, मैं आउटपुट यूज करने वाला हूँ। ओके, तो ये कितने बार करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना आर्डिनो को। तो एक ही बार बताना पड़ेगा। तो मैंने सेटअप में लिख दिया, देखो पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट कर दिया। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई। ओके, डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई किस लिए किया, क्योंकि आपने ही बोला देखो ऑन करना है ना, तो एनोड के ऊपर 1 सेंड करना पड़ेगा। ऑन करायचा आहे तर एनोडला 1 सेंड करायचा। 1 मतलब हाई, हाई इज नथिंग बट 1, हाई इज नथिंग बट 1, तो 1 सेंड किया मैंने, मतलब 5 वोल्ट सेंड किया। तो एलईडी क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो गया। ओके, अभी एलईडी को ऑफ करना है, तो एलईडी को ऑफ कैसे करोगे, तो सिंपल है, 13 कॉमा लो कर दो, एलईडी ऑफ हो जाएगा। लो मतलब 0 हो गया। तो भी देखो डिजिटली राइट किया मैंने 13 के ऊपर हाई, मतलब 13 नंबर हाई हो गया। ओके, 13 नंबर 5 वोल्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या किया, 13 नंबर 0 वोल्ट हो गया। अभी आपके कनेक्शन के हिसाब से एलईडी ऑन होगा या ऑफ होगा। ओके, इसके बीच में मैंने एक डिले फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। डिले, व्हाई डिले, बिकॉज यहाँ पे ब्लिंकिंग इफेक्ट हमें करना है। आता बघा ब्लिंकिंग इफेक्ट म्हणजे काय असतो, थोडा वेळसाठी ऑन आणि थोडा वेळसाठी ऑफ। आता तो थोडा वेळ किती आहे, तर इथे 1 सेकंद आहे। 1 सेकंद साठी ऑन आणि 1 सेकंद साठी ऑफ। आर यू गेटिंग दिस, यस। तो देखो अभी ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, अभी इसको रन करना है। सो आई कैन रन इट बाय यूजिंग द स्टार्ट सिमुलेशन। जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, यू कैन सी हियर योर एलईडी स्टार्ट ब्लिंकिंग, एलईडी स्टार्ट ब्लिंकिंग। लेकिन ये ब्लिंक क्यों हुआ, एक तो आपने ब्लिंक तो एक ही बार किए, ब्लिंक तो एक ही बार किया, लेकिन ये कंटिन्यूअसली क्यों एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज ऑफ द लूप फंक्शन। लूप फंक्शन क्या करता है, लूप फंक्शन काय करतो, लूप फंक्शन विल एक्झिक्यूट whatever you have written inside it, it is repeatedly execute। हे बघा याच्यामध्ये जे स्टेटमेंट लिहिता ना, ते कंटिन्युअसली रिपीटेडली एक्झिक्यूट करत राहतो, तेच करत राहतो। मी सांगितलं बघा, युअर एम्बेडेड प्रोग्राम शुड बी अ नेव्हर एंडिंग प्रोग्राम। एम्बेडेड प्रोग्राम शुड बी अ नेव्हर एंडिंग प्रोग्राम। हा नेव्हर एंडिंग कोड असेल तो लूप मध्ये लिहून टाकू। नेव्हर एंडिंग कोड ऑलवेज वी विल राइट डाउन द लूप फंक्शन। So when we start simulation, we are getting the actual output। देखो आउटपुट आ गया मेरा। Are you getting this? समझ लो how to do this? Just type yes अगर आपको ये समझा है कि ये कैसे किया। तो इसका अगर आपको देखना है, so I can share the link also।
I can share the link of this program in chat box. आप स्टोर करके रखो और बाद में ओपन करना है. Okay, so this is actually the simulation. Okay, I can show you the different simulation also. Just like बघा, आपण या प्रोग्राम मध्ये काय केलं, आर्डिनो वापरून आपण त्याची प्रोग्रामिंग पण केली आणि त्याचा आउटपुट पण बघितलं. बट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड this function of the Tinkercad. You can design the analog devices also. Analog circuit astat, the analog circuit also you can design. Just like the Sanjay Chaudhary sir has shared one link of the design of the stable multi-vibrator using the 555 stable multi-vibrator. Okay, तर हे बघा, हे सरांचं सर्किट आहे. We'll directly start with the simulation. Okay, you can see here the LED on off on off. Okay, LED on off depending on what is the value of that RC. Okay, resistor and capacitor, it get on off. Okay, automatic. तो आपण जो प्रोग्राम आता केला तोच प्रोग्राम हा एनालॉग ने केलेला आहे. हा तोच प्रोग्राम एनालॉग ने, हा इथे ऑन ऑफ होतोय, पण इथे ऑन आणि ऑफ टाइम थोडा वेगवेगळा आहे. ओके, ड्युटी सायकल इथे वेगळी आहे. वी कॅन ऍडजस्ट द ड्युटी सायकल ऑल्सो बाय चेंजिंग द आरसी सर्किट. ओके, व्हॅल्यू ऑफ द आरसी. सो इट मीन्स दॅट, फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे की युझिंग द टिंकरकॅड यू कॅन डिझाइन एनी circuit, analog circuit, as well as you can design the circuit of the any microcontroller based project also, microcontroller based project. जैसे कि ये देखो, ये मैंने ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस लिए किया है, ये इट विल एक्सप्लेन द मोशन, वर्किंग ऑफ मोशन सेंसर. अभी मोशन सेंसर क्या होता है, मोशन सेंसर बोलता है कि अगर कोई आता है, उसके सामने अगर कोई आता है तो वो मोशन डिटेक्ट करेगा. So let me check with the, okay, so actually it is not, code is not written, but I can show you the working of motion sensor. Directly connect किए, देखो directly connect किया है. तो जैसे कि if someone, ये देखो ऑब्स्टेकल है, ये अगर उसके सामने है ना तो एलईडी ऑन होगा. अगर कोई आता है ऑब्स्टेकल तो सामने ऑन होगा. अगर कोई आता है तो ये जो एलईडी ऑन होगा. लेकिन अगर ऑब्स्टेकल निकल गया, बाहर निकल गया, सो एलईडी रिमेन्स ऑफ. एलईडी रिमेन, उसके बाहर कितना भी है एलईडी ऑफ ही रहेगा. सो आई कैन सिमुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द सिमुलेटर्स. ओके, तो ये आपको सीखना है. ओके, अगर ये आपको सीखना है तो कहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे? ओके, ये आपको अगर सीखना है तो ये कहाँ पे मिलेंगे? सो वी हैव द इंटर्नशिप प्रोग्राम open for you, and that is the internship on embedded programming using Arduino. Internship on embedded programming using Arduino. उसमें सिलेबस देखो, इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो बोर्ड्स, आर्डिनो आईडी सीखेंगे. उसके बाद में टिंकरकैड के साथ हम करेंगे यूज ऑफ वेरिएबल, डिजिटल पिन्स, एनालॉग पिन्स क्या होती है, पीडब्ल्यूएम पिन्स का प्रोग्रामिंग क्या होती है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है. वी आर learning the different decision control structure, then how to create a function, how to use the array, how to use the operators, how to use breadboard, different types of interfacing, start with LED, RTC, RGB, switch, port, 7 segment, LCD, DC motor, servo motor, motion sensor, IR sensor, ultrasonic sensor. These kind of the sensors and actuator interfacing we will see. And we will also implement one of the mini project on the above topics. And after completion of this, you will get the intensive completion certificate. Okay, तो ये थोड़ा सा you can take a screenshot of this also. ये क्या है, about training. अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा का पूरा जो आपको होगा ना, आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो आर्डिनो है भी नहीं,
मैं करूंगा क्या नहीं, मैं कैसे करूंगा प्रोग्रामिंग, तो नो नीड ऑफ कंप्यूटर। आपके पास क्या होना चाहिए, एक गुड, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन नहीं है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन होना चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ सिमुलेटर एंड ऑनलाइन, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल रिकॉर्डिंग। अगे देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अगर उसका रिकॉर्डिंग चाहिए ना, मतलब अगर आपका इन केस ऑफ सम इंटरनेट कनेक्टिविटी, इफ यू मिस वन ऑफ द सेशन, then you can get all the recording of the all the session on our LMS platform, that is careerlifestylehub.com। ये हमारा खुद का एक्चुअली द प्राइस ऑफ द कोर्स जो हम आपको मिलने वाला है, जिसमें रिकॉर्डिंग मिलेगा, द प्राइस ऑफ द कोर्स इज एक्चुअल 1999, लेकिन ये आपको फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री है। जिन्होंने भी इंटर्नशिप एनरोल करते हो ना, तो ये उनके लिए लाइफ टाइम फ्री है। ओके, हर दिन में हम असाइनमेंट देते हैं, उसको आपको सबमिट करना होता है। इसमें हम एक्चुअली रियल टाइम में भी है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिमुलेशन ही करेंगे, रियल टाइम में भी देखेंगे, हम रियल टाइम भी प्रोग्रामिंग करेंगे, आर्डिनो आईडी के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, ब्रेडबोर्ड यूज करेंगे। अभी ये प्रोग्रामिंग यू कैन टेक अ स्नैपशॉट अगेन, ये देखो कितने दिन का है, तो ये 5 दिन का है, ओनली 1 वीक। टाइमिंग कितना है, 6 to 7। तो आप बोले कि सर 5 दिन में हो जाएगा, या डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी, मैंने पहले ही बोला इट इज अ वेरी इजी टू यूज। रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज है, लेकिन 4 जून तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, देन द फी, डिस्काउंटेड फी इज 350 रुपीज, 350, ओनली 350 रुपीज। 350 रुपीज इज द प्राइस ऑफ, इट इज द प्राइस ऑफ द वन मूवी शो। अगर आप मूवी शो देखने के लिए जाओ ना, 3 घंटे में 350 रुपए आप खरीद वहां पे वेस्ट करते हो, वेस्ट ही करते हो, बिकॉज इट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। लेकिन वही अगर आपको पूरा वीक अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, सो दैट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। why we will have this less fee, because this is platform, this we are doing the training on a Zoom platform के लिए, that's why the fee is less, the and you will get an internship completion certificate। okay, so there you can note down this Telegram channel, आपको just take a snapshot, link.ganeshattarde.com/clh-telegram, CLH stand for Career Lifestyle Hub, CLH-Telegram। इसमें एक चैनल को आप ज्वाइन करोगे, और उस चैनल में जो भी फर्दर अपडेट्स होगा, ऑल द फर्दर अपडेट्स विल बी शेयर्ड ऑन दैट चैनल ओनली। yes, there is a fee, yes, the fee is 350 rupees, only 350 रुपये। ये देखो आपके, सिर्फ आपके कॉलेज के लिए, एक्चुअली ये सिर्फ आपके कॉलेज के लिए है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यही फी 1000 रुपीज का होता है। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट द इट इज अ फी इज अप टू 1000 रुपीज, एंड दे आर इजीली गिविंग द 1000 रुपीज। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं थर्ड ईयर में, तो इफ यू हैव द प्रोजेक्ट एंड इफ यू हैव द आइडियाज विथ यू टू बी इम्प्लीमेंटेड, आपके क्रिएटिव आइडियाज, और बोलोगे सर ये तो मुझे इम्प्लीमेंट करना है लेकिन आता नहीं है, 5 दिन में सिखा सकोगे? यस, आई कैन टीच यू। So, but only up to the 4th of June, only 4th of June, the fee is only 350 rupees, 30% discount. So for further update, you can join this one. I'm also having my YouTube channel. I'm also having the YouTube channel. I'm sharing the link of my YouTube channel. You can also join that YouTube channel /YouTube. Okay, link.ganeshattarde.com/YouTube. This is the link of that YouTube channel. You can join the YouTube channel. So I'm always sharing some videos, technical videos on them. Okay, registration process, again take a snapshot लेना है कि ये अगर प्रोग्राम को अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे कर सकोगे। So you have to make a payment online by using PhonePe, Google Pay, by on these numbers. सर एक्चुअली ये पूरा आपको सर्वे, आपके सर्वे आप शेयर करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू हैव टू सबमिट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेमेंट, और ये जो इंफॉर्मेशन दी है दैट आपको सबमिट करना है इस नंबर के ऊपर, एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी एडेड ऑन अ वन व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें सभी नोटिफिकेशन और उसमें आपको मिलेंगे। सो हैव यू डन विद द स्क्रीनशॉट? जस्ट टाइप डन इन चैट बॉक्स।
अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया और इस इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन इफ यू हैव रिगार्डिंग टू दिस ट्रेनिंग देन यू कैन आस्क मी and this is our contact details. You can directly contact me. So we will open the question and answer session. So last 10 minutes is remaining. We will open the question and answer session. तर काही question answer असतील, but that should be some relevant. Then you can ask me. You can unmute yourself. Thank you, sir. Students, any questions? No, sir. Sir, I have one question. Yes, sir. How we can perform these practicals by using smartphone? Is there Yes, any sir. app? No app is required, sir. Your smartphone should have only the Google Chrome install. Okay, Google Chrome. फक्त गुगल क्रोम पाहिजे. गुगल क्रोम असलं तर तोच जसं आपण इथे करतो ना तर सेम परफॉर्मन्स यू विल गेट. इथे आपण जे करतो ना तसं तुम्हाला गुगल क्रोम वरती भेटणार आहे Okay. तिथे. म्हणून म्हणजे- तिथे काही आपल्याला लॅपटॉप असायची पण गरज नाही आणि हे खूप बेनिफिशियल आहे. बघा मुलांजवळ 10-20 हजाराचे फोन असतात हो. पण त्यांच्याकडे लॅपटॉप नसतो. मग काय करू शकतो आपण की जर मुलांना माहिती असतं बघा की जो स्मार्टफोन असतो त्या स्क्रीन मोठा असतो. ओके, तर त्याला Okay. मी माऊस सुद्धा लावू शकतो. Okay. आय कॅन कनेक्ट द USB माऊस टू माय अँड्रॉइड फोन. मग अँड्रॉइड फोनला माऊस लावला तो समोर ठेवायचा आणि मग तुम्ही इथून माऊसने सगळं तुम्ही ऑपरेट करू शकता Exactly, like a laptop. लाईक अ लॅपटॉप. इवन Okay. यू कॅन कनेक्ट द कीबोर्ड ऑल्सो. जर तुम्हाला वायरलेस कीबोर्ड माऊस असेल ना, वायरलेस कीबोर्ड माऊस असेल तर वायरलेस कीबोर्ड माऊस सुद्धा तुम्ही त्याला लावू शकता. Okay. खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे हा. त्यामध्ये नवीन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशनची गरज नाहीये आणि मोस्ट ऑफ आपल्याला जे लागतं ना प्रॅक्टिकलला ते सगळं आहे यामध्ये. सगळं पूर्ण आहे. Thank you, sir. येस येस. डेफिनेटली तुम्ही जे आजचे वेबिनार माहिती दिली आम्हाला, या माहितीचा उपयोग आमचे विद्यार्थी तसेच जे टीचर्स काही जॉईन झाले आहेत त्यांना प्रॅक्टिकल सेशन घेण्यासाठी खूप महत्वाचं ठरेल. येस. Students, any doubts? If you have any doubt, any query, you can ask. Okay. I think no doubt, sir. बरेच वेळोवेळी तुम्ही सगळ्यांचे डाऊट क्लिअर केलेच. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे डाऊट खूपच कमी आणि ते असणार तर कसे काही विद्यार्थी लाजळू असतात. येस येस. नाही मुलांना कधी डाऊट येतात सर, ज्या वेळेला ते करतात ना त्यावेळेला डाऊट येतात. हो. ऐकायच्या वेळेला त्यांना काहीच डाऊट नसतात, पण ज्या वेळेला ते सुरुवात करताना इम्प्लिमेंटेशन करतात त्यावेळेला तर त्या केसमध्ये कधी त्यांना काही डाऊट असले सो दे कॅन कनेक्ट. आणि आपला इंटर्नशिप प्रोग्राम आहे तो तर एनिवे तुम्ही त्यांना प्रोमोट करू शकता सर की. आणि यामध्ये 100% गॅरंटी आहे आमची की त्या 5 दिवसानंतर डेफिनेटली दे गेट स्टार्ट प्रोग्रामिंग. आमच्या प्रोग्राम मध्ये इव्हन 10वीचे स्टुडंट्स पण आहे की 10वीचे मुलं सुद्धा प्रोग्रामिंग व्यवस्थित करणार. पहिल्या दिवशी त्यांना इंटिजर व्हेरिएबल कसा क्रिएट करायचा ते सुद्धा माहिती नव्हतं. 5व्या दिवसामध्ये त्यांनी 10, 20, 25 लाईनचे प्रोग्राम लिहितात आहे. आणि काळाची गरज पण आहे सर. आता जसं बघायला गेलं तर रास्पबेरी पाय हे जे फाउंडेशन आहे त्यांनी अमेरिकेमध्ये 4थी 5वीचे जे विद्यार्थी त्यांना टेक्नॉलॉजी अपडेट करण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे. बरोबर आहे. बट आपण आता हे जे काय प्लॅटफॉर्म किंवा हा जो स्टडी आहे आपण विद्यार्थ्यांना युजी पीजी लेवलला देतोय. म्हणजे आपण याच्याने समजू शकतो की किती बॅकवर्ड आपण आहोत. मागे आपण बरोबर. की त्या ठिकाणी 4थीच्या विद्यार्थ्याला रास्पबेरी पाय शिकवला जातो आणि आपल्याला SY किंवा म्हणजे युजी पीजी ला आपल्याला हा कोर्स येतोय. तर निश्चितच येत्या भविष्यात येत्या काळात या उणीवा भरून निघतील. जर कधी आपण अशाच प्रकारचे प्लॅटफॉर्म विद्यार्थ्यांना देत गेलो, टेक्नॉलॉजी अपडेट देत गेलो तर डेफिनेटली हा जो गॅप आहे हा गॅप कुठे ना कुठे एखाद्या पिढीने भरून म्हणजे निश्चितच भरून काढला जाईल. त्यासाठी अशा ऍक्टिव्हिटी राबवणं देखील गरजेचं आहे. वर्कशॉप आणि त्याच्यामुळे काय असतं सर, जे वर्कशॉप असतात किंवा आपण FDPs घेतो त्यामध्ये काय होतं की कमी दिवसामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त नॉलेज घेण्याचं तिथे आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटते. पण जर तेच तुम्ही जर अकॅडमिक्स मध्ये एखादा सब्जेक्ट काढला तर तो सब्जेक्ट आपण पूर्ण वर्षभर शिकवत असतो. हो हो. मग तो वर्षभर शिकवता मुलं त्यामध्ये बोर होतात. म्हणजे मुलांना कसं राहतं की आता दिलं ना त्यांच्याकडून लगेच करून घ्यायला पाहिजे आणि ते कंटिन्युअसली पाहिजे त्यांना. 5 दिवस सलग 10 दिवस सलग असलं ना तर ते 100%. आपल्यालाही बघा FDP मध्ये ज्या वेळेला आपण जातो फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये त्यावेळेला आपण 5 दिवसामध्ये किती जास्त शिकतो, खूप शिकतो आणि नंतर मग त्याची प्रॅक्टिस करत बसतो. एक्झॅक्टली सर. सेम काइंड ऑफ द प्रोग्राम शुड बी अरेंज फॉर द स्टुडंट्स.
नक्कीच सर, भविष्यात आपण अशा ऍक्टिव्हिटी राबवतच राहू. येस येस. मी एका फोनवरती माझं इन्व्हिटेशन स्वीकारलं त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या तर्फे धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच सर. करतो सर. आणि त्याचप्रमाणे अजून काही विद्यार्थ्यांना मी पुन्हा एकदा विचारतो, एनी स्टुडंट्स ऑफ स्टाफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. हाय सर. या नेहा, येस. सर, तो जो आपण ते सिम्युलेटर मध्ये प्रोग्राम लिहितो हम्म. तो कोड प्रत्येक वेळेस सेव्ह करावा लागतो का? नाही, तो आता इंटरनेट वरती असल्यामुळे त्याला सेव्ह करायची गरज नसते. ज्या वेळेला आपण इथे करतो ना, हा बघ आपण इथे प्रोग्राम केला. हा प्रोग्राम सपोज मी एखादा प्रोग्राम ओपन करतो. सपोज इथे एखादा प्रोग्राम केला मी इथे. जे काही करतोय ना, आता इथे काही सेव्ह बटन नाहीये. इथे काही सेव्ह बटन नाहीये. तो ऑटोमॅटिकली सेव्ह होतो. ऑटोमॅटिकली सेव्ह होतो. ओके, थँक्यू सर. इथे काही सेव्ह बटन नाहीच आहे. ऍक्च्युली तू बघ काही करते ना तू, जसं गुगलचा एखादा वर्ड ओपन कर. गुगल मध्ये एक वर्ड असतं बघ, वर्ड डॉक्युमेंट ओपन केला आपण गुगल ड्राईव्हला, तर तिथे जे काही टाईप करत असतो ना ते ऑटोमॅटिक सेव्ह होत राहतं. हे ऍक्च्युली याचा फायदा असतोय, ऑनलाईनचा खूप फायदा आहे. आणि पुढे जाऊन तर मोस्ट ऑफ हे जे ऑफलाईन सॉफ्टवेअर आहे हे बंद होतील आणि सगळे सॉफ्टवेअर ऑनलाईनला रिप्लेस करतील. थँक्यू सर. But Neha, other students, Thank you, sir. if you have no doubt, so we can stop here. येस डेफिनेटली सर. सर उद्या आपण रासबेरी, आता एम्बेडेड सिस्टम बेसिक बऱ्या आपण तुम्ही आज कव्हर केलं. ओके, आता आपण उद्या रासबेरी पाय आणि त्याचे प्रोग्रामिंग, इव्हन दो काही थोडे प्रोजेक्ट बेस्ड थोड्या इनोव्हेटिव्ह काही आयडिया असतील तसं विद्यार्थ्यांना सांगा. कारण की उद्या आपण आहे ना डायरेक्टली सर स्टार्ट करेल. मी तुम्हाला रासबेरी पाय काय असतो, त्यानंतर त्याचं इन्स्टॉलेशन कसं असतं ते मी सांगेल. आणि त्यानंतर मी थोडं पायथॉन प्रोग्रामिंगचं बेसिक घेईल की जे Okay, चालेल रासबेरी sir. पायला लागतं ते. एक्झॅक्टली सर. रासबेरी आणि पायला जे लागतं आणि रासबेरी पाय वापरून आपण थोडे 1-2 प्रोग्राम रिअल टाइम मध्ये, कारण रासबेरी पायचं असं काही सिम्युलेशन नाही वापरणार मी, डायरेक्ट रिअल टाइम मध्ये आपण त्याला सिम्युलेट करूया. चालेल सर. म्हणजे आता विद्यार्थ्यांचं कालच्या लेक्चर मध्ये आणि आजच्या लेक्चर मध्ये बेसिक बऱ्या खूप कव्हर झालेलं आहे. काल संजय चौधरी सरांनी कोर इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट आहे तो त्यांना हँड्स ऑन ट्रेनिंग सारखाच एका प्रकारे ऑनलाईन माध्यमातून दिलेला आहे. Yes, आज yes. पण तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आर्डिनोचा जो टॉपिक आहे तो कव्हर केला. तो उद्या आता बऱ्यापैकी म्हणजे एम्बेडेड सिस्टम काय आहे आणि एम्बेडेड सिस्टम प्लॅटफॉर्म काय हे विद्यार्थ्यांना माहिती मिळाली असणार. तर त्या अनुषंगाने आपण उद्या डायरेक्टली रासबेरी पायची प्रोग्राम, त्याचे बेसिक इंट्रोडक्शन, त्याची प्रोग्रामिंग आणि काही रिअल वर्ल्ड इनोव्हेटिव्ह काही ऍप्लिकेशन समजा, आणि पायथॉन जसं फंडामेंटल ऑफ पायथॉन जे आहे प्रोग्रामिंगचं ते आपण कव्हर करूया, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आणि जे काही स्टाफ आहेत त्यांना त्या गोष्टीची नवीन माहिती होईल. आपले मेन फोकस म्हणजे विद्यार्थ्यांना खूप या गोष्टीचा फायदा होणारच आहे. आज विद्यार्थ्यांनी जसं त्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल कोर्स आहेत, तर प्रॅक्टिकल कोर्स कशा प्रकारे ते ऑनलाईन वेने करू शकतात, स्वतः प्रॅक्टिस घरी करू शकतात. इव्हन त्यांना काही अडचणी नसतात तर पर्टिक्युलर काय कसा सपोर्ट हवा या बऱ्याचशा गोष्टींची त्यांना आयडिया आली असणार. सर पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या वतीने मी तुमचे आभार मानतो व आजचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी संपलाही जाईल. येस येस. एक Okay, thank you, सांगायचं sir. सर थोडं की माझा प्रोग्राम आहे ना पायथॉनच्या मुलांना जर पायथॉन करायचं असेल तर ओके माझं आहे ना उडेमीला पण माझा कोर्स आहे, पायथॉन Okay. प्रोग्रामिंग मास्टरी म्हणून आहे. हा. युडेमी माहिती असेल ना तुम्हाला, युडेमी हो माहिती. ऑनलाईन. येस ऑनलाईन. तर हे हो. बघा पायथॉन प्रोग्राम मास्टर केल्यानंतर फर्स्ट माझाच येतो बघा, गणेश अत्तर. ओके तर याच्यावरती तुम्ही गेलं ना तर ऍक्च्युली प्राइस त्याची 5,000 रुपये आहे, पण हे वेगवेगळ्या डायनामिक प्राइस असतात याच्या युडेमी मध्ये. ओके 90% ऑफर असं चालू राहतं, कधी 350 रुपये, कधी 355, कधी 485, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑफर देत राहतात. ओके तर असंही काही मुलांना प्रमोट करू शकतात. माझा पूर्ण रेकॉर्डेड कोर्स आहे. हो नक्की सर. येस येस. ओके थँक्यू सर. थँक्यू. तरी बघा आजच्या आमच्या व्हिडिओची क्वालिटी ओके गुड. खूपच चांगले आहे सर. आपण ते काल आणि पाहिजे तेवढा झूम करता येतो. हो हो ते पाहिजे तेवढा झूम करता येतो. किती त्याला जवळून बघायचं तुम्हाला, हो किती त्याला जवळून बघायचा, कसा बघायचा, म्हणजे सगळी क्लिअरिटी. म्हणजे ज्या बरोबर. गोष्टी आपण डोळ्यांनी बघू शकत नाही त्या हा. गोष्टी कुठल्या पण अगदी क्लिअर दाखवायच्या असतील, कुठला पण सेन्सर असेल आणि काही असेल आणि किती पण क्लिअर दाखवायचा असेल, हा आता हा अजून जितका जास्त क्लिअर दाखवायचा असेल तितका आपण दाखवू शकतो. त्याला प्रत्येकाला खूप साऱ्या सेटिंग आहेत. हो इमेज क्लिअर दिसते सर. आता बघा हा ट्रान्झिस्टर आहे,
हो दिसतंय सर. हा रेग्युलेटर आहे. दिस वन इज रेग्युलेटर. मुलांना अगदी कुठल्याही गोष्टी अगदी बारीक मधल्या बारीक दाखवू शकतो. हो त्याच्यावरचा नंबरही रीड करू शकतो आपण. अगदी त्याच्यावर जो नंबर आहे ना, आता आपण हा डोळ्यांनी रीडच करू शकणार नाही, पण आपण हा आता आमच्या सॉफ्टवेअर मधून जर आपण त्याला प्रॉपर फोकस केला तर तो बरोबर रीड करता येऊ शकतो. म्हणजे ऑनलाईन असं काही नाही आहेत की ऑनलाईन मध्ये क्लिअर दिसणार नाही, तसं काही नाही आहेत. ओके, त्या गोष्टी उलट आपण बघू शकत नाही डोळ्यांनी, त्या गोष्टी आपण बघू शकतो. एक्झॅक्टली. बघा आता. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममुळे सर प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत ती माहिती जाते आणि म्हणजे जसं आपण ग्रुपने प्रॅक्टिकल घेतो तर काही विद्यार्थ्यांना हार्डवेअर पार्ट दिसत नाही, पण ऑनलाईन बघा सर माध्यमातून आता विद्यार्थ्याला दिसतो. हे महत्वाचं आहे. कुठे सर, हो हो बघा आता 2.3 old regulator AM1117. नंबर दिसतो हा नंबर तुम्ही डोळ्यांनी वाचू शकत नाही. हम्म. हा नंबर तुम्ही सरळ आयसी हातामध्ये असेल तरी वाचू शकत नाही. बरोबर. तुम्ही याच्याने वाचू शकतात. ओके, 1117. हो दिसतोय 1117. 1117. आता 3.3 हा old आयसी जरी तुमच्या हातात असेल तरी तुम्ही नाही वाचू शकत. बरोबर. मग कुठलाही ट्रान्झिस्टर, एससीआर, मॉस्फेट किंवा काही कंपोनंट अगदी डेप्थ लेवलला दाखवायचे आहेत, आम्ही या सॉफ्टवेअरने दाखवू शकतो. ओके. म्हणून आमचा झूम साठी आग्रह होता. नाही म्हणून आज झूमची लिंक क्रिएट केली सर. ओके थँक्यू सर. Thank you, sir. आणि सरांनी बघा किती डेप पासून घेतलं. हो म्हणजे खूप ती सुरुवातीला एम्बेडेडच्या मिनिंग पासून सुरुवात केली की एम्बेडेड म्हणजे काय, घरामध्ये कुठे असते, काय असते. त्यातला मी 5 मिनिटाचा पाठ काल बोललो होतो, पण हो. मी जास्त नाही बोललो. सरांनी आज अगदी बेसिक्स पासनं मुलांनी खूप सारे एक्झाम्पल सांगितलेत. मग त्या एक्झाम्पलच्या नंतर त्यातला एक एक पार्ट घेत मग नंतर आर्डिनो पर्यंत पोहोचून 2-3 प्रोग्राम मुलांना शिकवून पण झाले. म्हणजे विदिन अ सिंगल प्रोग्राम फ्रॉम अ व्हेरी बेसिक्स टू द लर्निंग ऑफ ऍटलीस्ट 1 to 2 प्रोग्राम. हो थोडक्यात सर एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड सिस्टम आहे आणि डेडिकेटेड सिस्टम प्रेझेंट करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला एक डेडिकेटेड पर्सनॅलिटी दिली, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो सर. आणि असेच कार्यक्रम आपण भविष्यात विद्यार्थ्यांसाठी घेत राहू इथे आश्वासन मानतो. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. Thank you, sir. चालेल सर, मग एन्क्वायरी मीटिंग. Yes, sir.